Hello friends, welcome to my channel again. I'm going to pick one more advanced topic of SQL, that is CTE, Common Table Expression. This is one of the most used topic in SQL, and using it day in day out in data analytics and data engineering and even the Transact SQL. And in this video also, I'm going to mix my language in Hindi and English so that better for all the people understanding. So let's begin with the CTE. What is CTE? Everyone must have already heard about CTE and also maybe used the CTE. But आज के सेशन में हम mostly focus करेंगे fundamentals and we'll deep dive and we'll explore the question which like mostly we don't cover. We generally focus on what is CTE and how to use CTE and how to create it without understanding of like what is the need of CTE. Is there any alternate for CTE and we can avoid using CTE, or it's beneficial to use CTE? Okay, so as the name suggests, CTE, Common Table Expression, by theory and the definition we know that CTE makes our query readable, modular and efficient, reusable, that we know. And in place of CTE, in many places we can use subqueries as well, but subqueries, like, it's little difficult to read in the code, and yeah, that makes your code messy. Okay, so इतना easy नहीं होता subquery के code को read करना. CTE के code को बहुत easily read किया जा सकता है. एक complex query को छोटे छोटे simple blocks में, module में break किया जा सकता है. That's why we call it modular, readable क्योंकि read करना easy है, and efficient, reusable. इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हमारे पास क्वेरीज में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमें एक ही क्वेरी रिपीटेटेड मल्टीपल बार लिखनी पड़ती है. सपोज आप बड़ा सा प्रोसीजर लिख रहे हो या बड़ा सा व्यू क्रिएट कर रहे हो इन SQL, एंड देन देयर आर कंडीशन विच यू नीड टू अप्लाई एवरी टाइम विद एवरी क्वेरी. तो उसमें क्या होता है, हमें एक ही कोड बार बार लिखना पड़ता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए भी हम CTE यूज करते हैं. अभी प्रैक्टिकली समझते हैं, देन विल कम टू हाउ मेनी टाइप ऑफ CTE. ओके, सो पहले first of all, what is like common table expression? So what is common, what is table here, and what is expression here? Okay, so let's understand with an example. So मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ये सारा CTE. I am using this AdventureWorks 2022 database of Microsoft. So AdventureWorks में I'm using this customer table and then order details table and order header table to solve this problem. Okay, so CTE में लिखते कैसे हैं पहले तो, right? How to create? So first question is in common table expression. What is common? What is table? And what is expression? Common. So common will come later, but table we understand first. Okay, so जब भी हम कोई select query लिखते हैं in SQL, so what we have to do, we have to select data from one table or multiple tables. So select query का purpose हमेशा data को select करके लाना होता है, right? कभी कभी क्या होता है कि हम जब क्वेरी लिखते हैं तो हमें इन बिटवीन एक क्वेरी चाहिए होती है, एक क्वेरी लिखनी पड़ती है जो डेटा को लेके आए. उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी इसमें मैं एक आपको प्रॉब्लम देता हूँ कि इस डेटाबेस में देयर आर दिस 3 tables. Let's focus on first understand the data of these 3 tables. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई प्रॉब्लम को टैकल करना है आपको SQL में, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस में, कहीं भी, तो पहले आपको डेटा को समझना पड़ता है. सो लेट्स डीप डाइव इन द डेटा फर्स्ट. तो इन दिस डेटाबेस AdventureWorks 2022 हमारे पास 3 टेबल हैं. ये कस्टमर टेबल है, ऑर्डर सेल्स डिटेल है, एंड हेडर टेबल है, विच यू कैन से ऑर्डर टेबल एंड ऑर्डर डिटेल्स टेबल. तो हमारे पास ये 3 टेबल हैं. इनको अगर हम रन करते हैं तो आप देखोगे इसमें किस तरह का डेटा है. ठीक है, तो customer table में as name suggests we have customer ID and rest of the data. Okay, we are focusing only on the customer ID and territory column for now. ठीक है, and then हमारे पास एक order table है जिसमें हर जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ये सेल्स स्कीमा के अंदर है, वी कैन सी इट. सो जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है दैट विल फॉल अंडर दिस टेबल. Okay, and for each order there will be an sales order ID. फिर क्या होगा, पहले के एग्जांपल्स में हमने देखा है कभी एक ऑर्डर के अंदर आपको मल्टीपल सब ऑर्डर हो सकते हैं. सब ऑर्डर्स का मतलब ऑर्डर डिटेल्स में, लाइक व्हेन यू गो टू एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑर्डर लेट्स से फ्लिपकार्ट,
तो आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक बार में ही ऐड करते हो। तो एज एन ऑर्डर आपका एक होता है, बट बिकॉज आपके ऑर्डर में प्रोडक्ट मल्टीपल हैं, आइटम्स मल्टीपल हैं, तो एक ऑर्डर डिटेल टेबल भी हमें चाहिए है। उस ऑर्डर डिटेल टेबल में आप देखोगे कि हमें ऑर्डर सेल्स ऑर्डर आईडी के थ्रू ये दोनों टेबल इन रिलेशन में है, एंड देन वी हैव द सेल्स डिटेल हियर। तो हमें पूरे ओवरऑल ऑर्डर का जो डिटेल है वो इस टेबल में जा रहा है, ऑर्डर हेडर में, एंड देन जो ऑर्डर्स की प्रोडक्ट लेवल या आइटम लेवल डिटेल है दैट इज गोइंग इनसाइड दिस टेबल। ओके, सो हमने टेबल समझ ली कि दैट दीज आर द टेबल। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि हमें टोटल ऑर्डर काउंट चाहिए है सारे कस्टमर्स का, जो कस्टमर्स की टेरिटरी 1 एंड 4 में फॉल करती है। ओके, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो वो कस्टमर, सारे कस्टमर नहीं, सिर्फ वो कस्टमर जिनकी टेरिटरी 1 एंड 4 में फॉल करती है। सब वन टेरिटरी होती है लोकेशन लाइक नोएडा एंड दिल्ली, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक फॉर दिल्ली इट्स 1 एंड नोएडा इज 4 लाइक दैट। सो हमें ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो टेरिटरी 1 एंड 4 में फॉल करें, और फिर हमें उनका जो टोटल उन्होंने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं ये पता करना है। लेट्स से दिस इज द सिंपल क्वेरी। ओके, तो हमें पहले तो कस्टमर की वो कस्टमर चाहिए जिनकी जो फॉल करते हैं टेरिटरी 1 एंड 4 में। तो अगर हम जाते हैं कस्टमर टेबल में, हमने देखा था वहाँ पे टेरिटरी कॉलम था, तो उसमें अगर हम ये क्वेरी लगाते हैं तो विल फिल्टर आउट ऑल द कस्टमर्स जो कि फॉल कर रहे हैं इन दोनों टेरिटरी में। ठीक है, अब ये आपको एक क्वेरी मिल गई। ठीक है, अब ये क्वेरी मिल गई, लेकिन आपको जो सेकंड क्वेरी है वो आपको आएगी ऑर्डर टेबल से, राइट, कि सेल्स ऑर्डर टेबल से। तो उसमें हमें क्या पता करना है, अगर आप देखोगे हमें पता करना है, जो यहाँ पे अभी हमने टेबल देखी थी सेल्स ऑर्डर, ये वाली, राइट, सेल्स ऑर्डर हेडर, ये जो हमारे पास टेबल है इसमें हमारे पास सारे ऑर्डर हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि अगर मुझे इसमें से सारे कस्टमर आईडी चाहिए हैं और काउंट एस्ट्रिक चाहिए है, राइट, उन सारे ये मुझे चाहिए है, और इसको मैं ग्रुप बाई कर देता हूँ कस्टमर आईडी से। आपको आता होगा ये करना, ठीक है, ये सिंपल एग्रीगेट है। तो फ्रॉम दिस टेबल ग्रुप बाई सेलेक्ट कस्टमर आईडी दिस फ्रॉम सेल्स हेडर ग्रुप बाई कस्टमर आईडी, तो आपको ये मिल रहे हैं, राइट, तो ऑर्डर काउंट। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए है कि वो ऑर्डर्स जो टेरिटरी 1 एंड फॉल में कस्टमर फॉल करते हैं उनके ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक कंडीशन लगानी है जहाँ पे सिर्फ आपको ये चाहिए कस्टमर आईडी, राइट। तो आप एक तरीका से ये कर सकते हो कि वेयर जो आपकी कस्टमर की टेरिटरी है, अब इसमें क्या रहेगा, अब क्योंकि आपको कस्टमर की टेरिटरी चाहिए, अब टेरिटरी तो एग्जैक्टली इस टेबल में है नहीं सेल्स ऑर्डर में, तो आपको इसमें कस्टमर टेबल के साथ ज्वाइन लगाना पड़ेगा, राइट। आप ज्वाइन लगाओगे तो आपको उसके उसकी आपकी टेरिटरी मिल जाएगी। ठीक है, और फिर टेरिटरी मिल जाएगी, मैं करके दिखाता हूँ। सो लेट्स ज्वाइन विद कस्टमर सेल्स कस्टमर, इसको बी टेबल दे देते हैं, इसको ए टेबल दे देते हैं। मान के चलते हैं कि सारी डायमेंशन एंड फैक्ट ऑलरेडी क्लीनड अप हैं, तो सारे कस्टमर सारे ऑर्डर्स में हैं, ऐसा कुछ रॉन्ग डेटा नहीं है, ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये किया, ये किया। अब हमने क्योंकि इसमें ज्वाइन लगा लिया है, तो अब हमारे पास कस्टमर टेबल से यानी कि बी टेबल से हमारे पास टेरिटरी आ जाएगी, टेरिटरी आईडी, राइट। सो अब हम बोल सकते हैं कि वेयर टेरिटरी आईडी इज in or equal, yeah, in this one। ठीक है, तो ये आपने फिल्टर कर दिया। ये सारी जगह एम्बिगुअस कॉलम हो गए। तो एक तरीका ऐसे होता है कि आपने ऐसे करके ग्रुप बाई कर, ठीक है, तो आपके पास ये कस्टमर आईडी का ऑर्डर काउंट आ गया जो टेरिटरी आईडी 1 में। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये आपको सपोज अभी मैं इसी में बोलता कि ठीक है ऑर्डर काउंट हो गया, बट मेरे को सम ऑफ अमाउंट भी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ अमाउंट भी चाहिए कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, तो फिर वो जो सम ऑफ अमाउंट आता वो आएगा कौन सी टेबल से, वो आएगा प्रोडक्ट डिटेल टेबल से, राइट, बिकॉज यहाँ पे सम यूनिट प्राइस के साथ में टोटल लाइन अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक अमाउंट है इस वाली टेबल में भी,
आप देखोगे ये सब टोटल अमाउंट, राइट, बट दैट इज टोटल। अब लेट्स से मेरे को चाहिए कि इनमें से जैसे टेरिटरी आईडी का ही फिल्टर है, और मैं बोलूंगा कि मेरे को प्रोडक्ट आईडी सिर्फ 771 और 772 का सम ऑफ सेल चाहिए, कि अच्छा इनका टोटल सम कितना था, सम, यानी कि आपको इन दोनों का सम चाहिए, तो दिस इज थर्ड टेबल। बट मुझे कस्टमर यही चाहिए जो टेरिटरी 1 एंड 4 में फॉल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, राइट, ये बार बार लगानी पड़ेगी। अब आप एक दोबारा से क्वेरी लिखोगे, ठीक है, सेम इसी की, और एक और ज्वाइन लगाओगे, वहाँ पे एक ज्वाइन और लग जाएगा आपका सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल के साथ में, एंड देन फिर से ये वाली क्वेरी लगेगी। बट यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है कि ये जो टेबल है इसमें ये जो क्वेरी फिल्टर है ये बार बार लग रहा है, ठीक है। तो उस सीक्वल के टर्म में देखेंगे, जब सीक्वल इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, तो उसको ये क्वेरी 2 बार रन करनी पड़ेगी। अभी मैं बाद में ये पूरी क्वेरी लिख के दिखाता हूँ, बट अभी सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे ही इसमें हम एक और ज्वाइन लगाएंगे तो ये एक क्वेरी और हो गई, और ये सपोज एक ही साथ रन हो रही तीनों क्वेरी, ठीक है। और आपको बाद में ये दोनों रिजल्ट कस्टमर आईडी के बेस में साथ में चाहिए, काउंट भी चाहिए है और सम भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेरी अलग है, ये क्वेरी अलग है, लेकिन आपको पता है कस्टमर आईडी के बेस में दोनों को फाइनल ज्वाइन कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट हमने यहाँ पे एक क्वेरी का रिपीटिशन किया है, वो ये वाली क्वेरी है, ठीक है। अब इसी क्वेरी को जब हम CTE से लिखते हैं तो हम CTE से क्या करेंगे, CTE बनाते कैसे हैं आपको पता है, विद स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं, CTE का नाम देते हैं, एज लगाते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट के साथ बंद करते हैं, और ये हमारा इस स्टेटमेंट को CTE बोलते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब जैसे हमने इसको, इसी क्वेरी को मेरे को लिखना है, ठीक है, ये वाला किया। अब मैं सेलेक्ट क्वेरी, दूसरी वाली जो क्वेरी है उसमें जाऊंगा और बोलूंगा कि जो ये टेबल है मुझे इससे बस काउंट ही तो चाहिए, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, बोलता हूँ कस्टमर आईडी दे दो एंड काउंट एस्ट्रिक दे दो मुझे इससे टोटल काउंट, एंड इसको ग्रुप बाई कर देते हैं कस्टमर आईडी से, एंड वेयर, और बोल देते हैं कि ठीक है। अब मेरे को वही इससे, अब देखो ये वाली क्वेरी पहले मैं लिख चुका हूँ, तो बोलूँगा कस्टमर आईडी इन, और आप चाहो तो इसको ज्वाइन लगा लो या सब क्वेरी से लिख लेते हैं, इजी रहेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CTE1। सो आप देखोगे ये जो CTE1 है ये आपको अभी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, सॉरी ग्रुप बाई को बाद में लिखते हैं हमेशा वेयर के। तो आप देखोगे ये CTE अवेलेबल है। अब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये सिंपली रन हो गई, राइट। वही काम जो अभी हम नीचे कर रहे थे, ये वही काम हमने किया है, ठीक है। अब इसी क्वेरी को अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को सम भी चाहिए, तो हम एक CTE2 बना देंगे, एज लिखेंगे, इसको इस दूसरी CTE में डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम एक ज्वाइन हमें लगाना पड़ेगा, अभी ज्वाइन लगा लेते हैं सेल्स, यही बोल रहा था कि मैं क्वेरी लिख के दिखाता हूँ, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, ये इसको B बोल देते हैं, ठीक है, इस टेबल को A बोल देते हैं, और इन दोनों के बीच में ज्वाइन लगा देते हैं बेस्ड ऑन सेल्स ऑर्डर आईडी, ठीक है, B डॉट सेल्स ऑर्डर आईडी, क्योंकि दोनों में है। अब हमारे पास ये दोनों में हो गया, कस्टमर हमारे पास सिर्फ सेल्स टेबल पे है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे काउंट नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए सम ऑफ लाइन टोटल, ठीक है, ये चाहिए जो कि B टेबल में आ रहा है, दिस इज B टेबल, इट्स अ गुड हैबिट टू राइट एलियास हियर, और इसको हम बोल देंगे टोटल सम, लेट्स से टोटल सम बोल देते हैं। और अभी भी ये जो ग्रुप बाई है वो उसी पे लगेगा, और ये देखो कस्टमर भी अभी वही के वही हैं जो टेरिटरी 1 एंड 4 में फॉल करते हैं। अब इस क्वेरी को आप रन करोगे तो ये आपका इस समय कस्टमर आईडी और टोटल सम आ रहा है, ठीक है। अब फाइनल क्वेरी हमें क्या चाहिए, फाइनल क्वेरी चाहिए है हमें, इसको बोल देते हैं CT3S, नाम आप मीनिंगफुल दे सकते हो, मैं सिंपल नाम लेने के लिए CT1 2 3 बोल रहा हूँ। अब हमें पता है कि हमारे पास दो CT अवेलेबल है, CT2 एंड CT3, तो कर देते हैं फ्रॉम CT2 A join CTE3 B on A dot customer ID is equal to B dot customer ID। हमें A से चाहिए हैं सिर्फ एस्ट्रिक, एंड B से कर लेते हैं टोटल सम, रन कर देते हैं। और अब आप देखोगे कि हमने इस क्वेरी को कितनी सिंपली कर लिया, और हमने बता दिया कि हर एक कस्टमर आईडी के लिए कस्टमर आईडी जो कि फॉल करते हैं, लाइक इन टेरिटरी 1 एंड 4, फॉर दोज ओनली कस्टमर दिस इज द टोटल सम ऑफ, I mean total count of orders, and this is the total sum of those orders, simple।
अब आप देखोगे यहाँ से, अब दोबारा से अपने उसमें जाते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को समझने, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन है वो कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये जो टेबल हमने बनाई, राइट, ये वाली, सिर्फ वो कस्टमर फिल्टर कर लिए जो टेरिटरी 1 और 4 में, क्योंकि दिस वाज अवर फर्स्ट नीड। तो जो कस्टमर सिर्फ टेरिटरी 1 और 4 में करते थे, तो हमने जब यहाँ पे किया तो हमने बोला सेलेक्ट एसटी फ्रॉम सिटी, ये इस वाले को, ठीक है। एंड इसी का रेफरेंस हमने दोबारा भी दिया, सेलेक्ट एसटी फ्रॉम सिटी 1। ये क्वेरी हमने बार बार, ये पूरी क्वेरी नहीं लिखी कि यहाँ पे बार बार हम पूरी क्वेरी लिखते या फिर एक और वेयर कंडीशन लगाते और सब क्वेरी के साथ, राइट। सो फॉर अस दिस इंटरमीडिएट टेबल इज कॉमन, जो कि इस क्वेरी में भी यूज हुई है और इस क्वेरी में भी यूज हुई है। ना तो हमें उसने दो बार लिखना पड़ा, ना एग्जीक्यूशन टाइम पे इसको एसक्यूएल को दो बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब एसक्यूएल में क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट होगा तो ये पूरी क्वेरी को एक बार में कंपाइल करेगा, राइट, एक साथ में। और वो देख लेगा कि अच्छा ये सिटी बेस्ड क्वेरी है, तो ये सिटी से स्टार्ट करेगा और देखेगा कि सिटी 1 का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे है। तो अगर उसको पता है कि सिटी 1 का रेफरेंस यहाँ पे इस दो जगह पे है और ये सिंपल ही डेटा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो वो इसको मेमोरी में रखेगा, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा। हम डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कॉमन क्या था, दैट ये टेबल दोनों में एक ही बार में यूज हुई है, ये क्वेरी हमने दो बार नहीं लिखी है। इसी को अगर आप अभी जो हमने डिराइव्ड क्वेरी मेथड से लिख रहे थे, अगर लिखते तो आपको ये वाला पार्ट दोनों बार लिखना पड़ता, इस जॉइन के लिए भी, इधर के लिए भी, लाइक काउंट कैलकुलेशन के लिए भी, सम कैलकुलेशन के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉमन टेबल। क्या है? एक, जब हमारे पास कॉमन टेबल जो हम बनाते हैं, सो दिस इज अ डेराइव्ड टेबल। डेराइव्ड टेबल हमने अभी समझी और समझ लेंगे, जो सब क्वेरीज में टेबल बनती हैं उनको हम डेराइव टेबल बोलते हैं। डेराइव टेबल मतलब क्या है? कस्टमर तो पूरी टेबल है, लेट से कस्टमर में आपके 20,000 कस्टमर्स हैं, बट मुझे सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जो इन दोनों टेरिटरी में फॉल करते हैं और इनको रन करेंगे। सो दीज आर लाइक 8,216 कस्टमर। तो हमारा जो ये पूरी क्वेरी है, इट्स वैलिड ओनली फॉर दिस कस्टमर। तो हमने उसको एक पहले से इंटरमीडिएट टेबल बना लिया, ठीक है, जो कॉमन भी है, दोनों में यूज हो रही है और एक डेराइव्ड टेबल की तरह काम करेगी। यानी कि यहाँ पे जो सिटी 1 है वो एक टेबल की तरह काम कर रही है, जो कस्टमर टेबल का ही की सब टेबल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल टेबल। और जो ये पूरा जो क्वेरी लिखते हैं इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो ये हमने लिखा है यहाँ पे सिटी 1, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसलिए हम इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो हो गया कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, टेबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। अब इसमें आपको रीडेबल है, ये आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेरी से ये कितना रीडेबल है। और यहाँ पे जो हम अलग अलग क्वेरीज लिख रहे थे, अगर हम इनको सब क्वेरीज बनाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपका ये जो क्वेरीज होती हैं, लाइक जब सब क्वेरीज होती हैं, तो लेट से हमें वो कस्टमर चाहिए जो कि टेरिटरी उसमें फॉल करते हैं, ठीक है, टेरिटरी 1 और 4 में फॉल करते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको एक सब क्वेरी की तरह लिख लेते, इस टेबल को यहाँ पे बोलते वेयर टेरिटरी इन, और फिर जो ये वाला पार्ट होता ये आता ये वाला, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये ऐसे हो गया। अब इसमें क्या है कि ग्रुप बाई हमेशा, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक टेबल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ टेबल नाउ, और इस ये टेबल है। तो हम बोल रहे हैं कि सब क्वेरी वेयर टेरिटरी इन, और यहाँ से अब दूसरा इसमें ये भी है कि कस्टमर का हमने ज्वाइन एक लगाना पड़ा था, तो कस्टमर आईडी होगा। तो मेरे को सिर्फ वो कस्टमर चाहिए हैं बी टेबल से, बी डॉट कस्टमर, ठीक है, जो कि फॉल करे इन दोनों टेरिटरी के अंदर, और फिर उनको ग्रुप बाई कर रहे हैं। सो दिस इज 1। फिर आप इसके लिए एक और क्वेरी लिखोगे, राइट, इस ये क्वेरी के लिए। तो अगर मान लेते हैं हम कि इस सबको सब क्वेरी में ले भी जाएं, तो ये जो दूसरी वाली क्वेरी है इसको आप ऐसे लिख नहीं पाओगे, आपको ये सेपरेट क्वेरी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब आपको कॉमन टेबल को दो बार यूज करना होता है, तो आप सेम टेबल को दो बार नहीं यूज कर सकते, आपको दोबारा लिखना ही पड़ेगा सब क्वेरी के फॉर्म में। तो सब क्वेरी अगर हम ये सम वाली आप बनाते हैं, अगर हम इस क्वेरी को कॉपी कर लें, यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, तो ये हमें दोबारा से ये वाली जो क्वेरी है ये लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको लिखने में। और ये जो अप्रोच होगी इसको फिर आप क्या करोगे, लेट से ये वाली क्वेरी आपने एक बना ली, ठीक है, ये आपकी एक क्वेरी हो गई, ठीक है। अब आप इसकी एक दूसरी क्वेरी की तरह ये आपकी एक दूसरी ये ए हो जाती, ठीक है, ये ज्वाइन लिखते आप। फिर ये आपकी एक और ये वाली क्वेरी हो जाएगी, दूसरी वाली, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कस्टमर डिटेल का वो है, और ये वाली सब क्वेरी आपको फिर भी लिखनी पड़ेगी। तो जहाँ पे हमारे पास ये है,
इसमें हमें अभी ये फिर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये क्वेरी हो गई, एक ये क्वेरी हो गई, अब ये दोनों ज्वाइन हो गए, तो ये टेबल ए हो गई, ये टेबल बी हो गई। और अब हम यहाँ पे इधर बोलेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करो। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, देखो वही जो क्वेरी ऊपर लिखी है वही ये क्वेरी भी है, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बी है एंड ऑन ए डॉट कस्टमर आई डी इज इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आई डी। इसको रन करोगे तो ये क्वेरी भी सेम ही क्वेरी होगी जो ऊपर क्वेरी थी, ठीक है। देखते हैं रन करके, थोड़ा सा मेसी हो गया बट करके देखते हैं। तो 7993 एंड 7993, तो आप देखोगे कि ये दोनों सेम क्वेरी हैं, बस इसमें अभी मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक ले लिया है। आप बोलो तो ए डॉट एस्ट्रिक कर लो और बी डॉट टोटल कर लो, तो अब एग्जैक्टली सेम क्वेरी हैं दोनों ये, कि अभी आपकी ये क्वेरी और ये क्वेरी दोनों सेम क्वेरी है, दोनों का सेम आउटपुट है। अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि इस क्वेरी को पढ़ना कितना मुश्किल है और इस क्वेरी को रीड करना कितना इजी है। इस क्वेरी में ये पता चल रहा है कि अच्छा हमें वो कस्टमर चाहिए जो इनकी टेरिटरी 1 and 4 हो, फिर हमें उनका टोटल ऑर्डर काउंट चाहिए, सिर्फ उतने कस्टमर, तो यहाँ पे फिल्टर लगा लिया। फिर उसी कस्टमर जो यहाँ पे हैं उनका ही मेरे को सम चाहिए, सो हमने सम लगा लिया। एंड देन क्योंकि दोनों टेबल हमें पता है कि अभी ये जो इंटरमीडिएट टेबल है जो सीटी के फॉर्म में है, दे बोथ आर इन रिलेशन यूजिंग कस्टमर आईडी, सो नाउ वी कैन ज्वाइन दीज टू टेबल एंड वी कैन हैव दीज कॉलम्स। बट जब हम इनको सब क्वेरी से सॉरी डेराइव टेबल और सब क्वेरी बना के लिखते हैं, जो कि सेकंड अप्रोच है, तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें जो हमारी रीडिंग है वो टॉप डाउन होती है, राइट, टॉप टू बॉटम। तो हमने टॉप से स्टार्ट करते हैं और जैसे हमारा नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है किसी चीज को रीड करने का वो टॉप बॉटम है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ऐसे रीड करते हैं। सो इट्स टू इजी टू रीड एंड मॉड्यूलर भी है, छोटे छोटे पार्ट में हमने क्वेरी को तोड़ रखा है। जो ये क्वेरी है ये भी सेम रिजल्ट दे रही है और परफॉर्मेंस वाइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ओनली थिंग इज कि दैट वी आर कैलकुलेटिंग दिस पार्ट 2 टाइम, यही सिर्फ परफॉर्मेंस डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ही क्वेरी है दोनों सीक्वल के पर्सपेक्टिव से। बट इसमें आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना होता है। अच्छा कौन से कस्टमर चाहिए आपको, ये वाले, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस लाइन, ये वाले लाइन नंबर पढ़ोगे, देन आपको ये वाली क्वेरी रीड करनी है, ठीक है। फिर आप ये लाइन पढ़ोगे, फिर आपको ये क्वेरी रीड करनी है। फिर जब ये दोनों क्वेरी रीड हो जाएंगी तब आपको ये दोनों का ज्वाइन कंडीशन रीड करना है एंड देन आपको फाइनल आउटपुट रीड करना है। कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे, ये चीज बहुत इजी है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल की रीडेबल हो जाती है, मॉड्यूलर हो जाती है क्वेरी और रीयूजेबल हो जाती है। और देखो हमने दिखाया कि ये क्वेरी यहाँ पे बार बार रीयूज हो रही है, इसके केस में ये वाली क्वेरी हमने 2 बार लिखी है। मतलब इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे वेयर कंडीशन, बट ऐसी आपको सिचुएशन बहुत मिलेंगी जब आपको ये क्वेरी बार बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं सब क्वेरी। और जो ये पार्ट होता है एसक्यूएल के टर्म में, क्योंकि ये टेबल, इसको हमने बी टेबल नाम दिया है, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ डेराइव्ड टेबल। सो इस पार्ट को हम बोलते हैं डेराइव्ड टेबल, और जो वेयर कंडीशन के बाद जो क्वेरी लगा देते हैं इसको बोलते हैं सब क्वेरी। बट ये मोस्टली सब क्वेरी एंड डेराइव्ड टेबल एक ही है, इंटरचेंजेबली हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने इसको सब क्वेरी बोल दिया टोटल पूरे को तो कोई गलत है, इट्स ओके, दिस इज स्टिल अ सब क्वेरी। सब क्वेरी का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ी क्वेरी का छोटा पार्ट इज कॉल्ड सब क्वेरी, ठीक है। सो हमने बेसिक तो कॉन्सेप्ट समझ लिया सीटी का कि सीटी क्यों यूजफुल है, ठीक है। और डेराइव्ड टेबल सब क्वेरी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टू रीड है और बॉटम अप अप्रोच होती है इसको रीड करने में, और डेराइव्ड टेबल कैन नॉट बी रीयूज्ड, और इसमें बहुत बार बार जो ये डेराइव्ड टेबल यूज हो रही है इनको दोबारा दोबारा लिखना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस आपको आ गए, ठीक है। अब आता है टाइप, कितने तरह के सीटी होते हैं, थोड़ा सा और इनकी वो देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं, फिर टाइप में जाते हैं। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हमने देख लिया क्यों यूज करते हैं, और हमने इनको एग्जांपल से समझा भी दिया। कंपेयर विद डेराइव्ड टेबल एंड सब क्वेरी एग्जांपल हमने कंपेयर करके देखा सेम क्वेरी के लिए हाउ इट इज डिफिकल्ट। नाउ कम्स द वेयर टू यूज व्यूज, वेयर टू यूज सीटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। हमें सीटी के, तो अगर आपको टेम्परेरी टेबल आती है विच इज ऑल्सो गुड टॉपिक इन एसक्यूएल, सो इफ यू अंडरस्टैंड टेम्परेरी टेबल, तो आपको पता है कि जो ये क्वेरी हमने सीटी में लिखी है ये वाली, राइट, ये वाली जो टेबल क्वेरी हमने लिखी है, इस पूरी क्वेरी को हम टेम्प टेबल पे भी लिख सकते हैं और दैट विल बी वेरी इजी टू रीड एज वेल।
उसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको देखना है, ठीक है, कॉपी करा, अभी सेम ही क्वेरी अगर हम यूज़ करें तो इसको मुझे लगेगा 2 मिनट लिखने में, ठीक है। तो हमने पहला एक इसको बोल दिया इनटू temp1 ct1 की जगह पे, ठीक है, इसमें इसको स्टोर करा लिया। दूसरा जो ct2 था उसको बोल दिया, पता है कि कैसे कर बनाते हैं टेम्प टेबल, इनटू राइट temp2 जो दूसरी क्वेरी है, इसमें हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती जब टेम्प टेबल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो ct1 टेबल थी वो temp1 टेबल से रिप्लेस हो जाएगी और ये हमारी temp2 टेबल बन गई, ठीक है। और जो ct3 है इसको भी हटा देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं ये temp1 है और ये जाएगी हमारी temp3 में, ये temp3 टेबल हो गई। इनटू में लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज temp3 टेबल। और अभी आपको जो यहाँ पे हमने temp ये यूज़ करी है इनको बोल देते हैं temp2 और ये बोल देते हैं temp3, ठीक है। और अब इसको आप रन करोगे तो इसमें आपको पूरा एक ही बार वन टाइम रन करना होता है, अब क्योंकि डेटा फिजिकली स्टोर्ड है तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है 7993, राइट। सो हमने कितनी जल्दी इस क्वेरी को टेम्प टेबल में भी लिख लिया और सेम सेम जो क्वेरी सीटी में थी, राइट। देन द क्वेश्चन कम्स, तो फिर हमें व्यूज की मतलब सीटी की क्या जरूरत है, राइट। सो व्हाई वी नीड सीटी इफ वी कैन यूज टेम्प टेबल, एंड टेम्प टेबल फिजिकली स्टोर होती हैं, इट्स इजी टू मेंटेन द डेटा। कहाँ पे फिजिकली स्टोर होती हैं इफ यू डोंट नो, तो आपको आना है इधर अपनी इसमें जो डेटाबेस है, राइट, ये आपके डेटाबेसेस हैं। तो इधर पे जाओगे सिस्टम डेटाबेसेस, देखोगे आप आपका टेम्पडीबी कॉमन होता है सारे डेटाबेसेस के लिए, टेम्पडीबी। और यहाँ पे आप टेबल्स चेक करोगे, सॉरी नॉट हियर, टेम्परेरी टेबल्स, आपको देखोगे temp1 टू temp2 temp3, सो दे आर फिजिकली स्टोर्ड टेबल आपकी रहती है, राइट। बट सीटी अभी आगे पढ़ते हैं, सीटी इज नॉट अ फिजिकली स्टोर्ड टेबल, सीटी सिर्फ रन टाइम पे होती है जो मेमोरी में रिसाइड करती है मोस्टली, ओके, नॉट 100% बट मोस्टली इट्स रिमेन्स इन द मेमोरी, इन मेमोरी, और सिर्फ रन टाइम के लिए बनती है और उसके बाद खुद से ही फ्लश हो जाता है मेमोरी से डेटा, ठीक है। तो फिर हमें क्वेश्चन वापस आते हैं, व्हाई वी यूज सीटीई नॉट टेम्प टेबल और सब क्वेरी। सब क्वेरी और टेम्प जो सीटी है वो इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट, सिर्फ रीयूजेबिलिटी को छोड़ दो तो, बट क्योंकि कोड लिखना बहुत इजी है इस वजह से वी यूज सीटी, वी अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, बट टेम्प टेबल में तो और भी आसान है कोड लिखना, देन व्हाई वी नीड सीटी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हैगा कि जो टेम्प टेबल है दे आर वेरी गुड, बट टेम्प टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, दैट वी कैन नॉट यूज टेम्प टेबल्स इन व्यूज एंड फंक्शंस इन एसक्यूएल, एटलीस्ट एसक्यूएल सर्वर, ओके। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमारे पास ये वाली क्वेरी है, हम बनाते हैं, आपको व्यू बनाना आता होगा, नहीं तो अभी ये बना देता हूँ, ठीक है। व्यू हमने बनाया temp1 एज, और ये जो क्वेरी है ये मैं व्यू के अंदर लिखने वाला हूँ, सो क्रिएट व्यू एज व्यू temp1, रन हो गया, ठीक, ये बन गई। और अभी आपका जो डेटा है वो इसके अंदर चला जाएगा, राइट। इट्स लाइक व्यू वर्क्स एज अ वर्चुअल टेबल। तो अभी आप डेटा जो क्वेरी आप रन कर रहे थे, देखो ये क्वेरी यहाँ से आने लगी, ठीक है, इट्स सेम क्वेरी। बट जब हम टेम्प टेबल जो अभी हमने ये क्वेरी बनाई है, सो बोलते हैं क्रिएट व्यू व्यू temp2 एज एंड ट्राई टू हैव ऑल दिस, आपकी क्वेरी यहाँ तक है, राइट। तो इनको आप यहाँ पे इसको क्रिएट करने की ट्राई करो और आपको एरर आ जाएंगे, राइट, दैट दिस इज इनटू दिस हैज डिनोटेड टेम्परेरी टेबल व्हिच आर नॉट सपोर्टेड। अब आपको समझ में आ गया कि टेम्परेरी टेबल जो है वो व्यूज में नहीं यूज होते हैं, ठीक है। उसका एक डीप रीजन है क्यों नहीं यूज होते हैं, क्योंकि जो टेम्परेरी टेबल है ये टेम्प टेबल फिजिकली तो स्टोर होते हैं, बट टेम्प टेबल सिर्फ एक सेशन के लिए परसिस्टेंट होते हैं, मतलब एक सेशन के लिए रहते हैं। जैसे ही क्वेरी का सेशन क्लोज होता है टेम्प टेबल डिलीट हो जाती है। जो व्यूज होते हैं, व्यूज आर कॉल्ड परसिस्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। परसिस्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि परसिस्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स पे रिलाई करते हैं जो हमेशा डेटाबेस में अवेलेबल हो, ओके। सो दे आर जस्ट यूज फॉर अब्स्ट्रैक्शन, और वो हमेशा एक परसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं बेस्ड ऑन द परसिस्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि
वो उन पे ही रिलाई करते हैं जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट हर समय डेटाबेस में अवेलेबल रहे। एंड टेम्प टेबल ऐसा नहीं करती, रहे टेम्प टेबल सिर्फ सेशन के टाइम पे क्रिएट होती है एंड देन खुद से ड्रॉप हो जाती है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली टेम्प टेबल व्यूज के अंदर नहीं यूज करे जा सकते हैं। हमें इस वजह से जो टेम्परेरी टेबल है ना वो फंक्शंस में सपोर्टेड है ना वो व्यूज में सपोर्टेड है, राइट। तो फिर यहाँ पे हमारे पास टेम्प टेबल का ऑप्शन बचता नहीं है, इसलिए वी मस्ट यूज सीटी। ठीक है, या तो सीटी यूज करो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने के लिए व्यूज में, या फिर यू कैन यूज सब क्वेरीज, बट सब क्वेरीज हमने देखा है सब क्वेरी डेराइव क्वेरीज आर कॉम्प्लेक्स टू राइट, तो फिर सीटी ही ऑप्शन बचता है, राइट। तो आप व्यू में टेम्परेरी टेबल नहीं बना सकते। सो दिस इज द मेन लिमिटेशन जिसकी वजह से आपको व्यू बनाने में आपको सीटी यूज करने आने ही चाहिए। ठीक है, so this is the example I have given you कि views where temp tables are not supported. Same way आपके functions में भी temp table supported नहीं है, वहाँ पे temporary variable supported है। functions एक अलग topic है, that's a big topic, maybe someday I will cover SQL functions and procedures. Procedure is itself is a big topic, but functions अलग से किया जा सकता है। but in function if you try to create a temp table in between complex query आप नहीं बना पाओगे, it will not support, but there you can use temporary variable, temp table variable. so वो भी टेबल में ही सपोर्ट होते हैं, सॉरी रन टाइम पे डीबी में ही स्टोर होते हैं, बट दे आर सपोर्टेड इन फंक्शन बट नॉट द टेम्प टेबल। ठीक है, बट जो सीटी होता है, right, and temp tables are widely supported in functions, sorry, in procedures. So when you are writing procedures you are good, always use temporary table, it's okay to use। ठीक है, बट जब functions और view की बात आती है then we have to think of views, CT, and CT is supported in all three, views में भी, functions में भी, stored procedures में भी। okay, so जो CT होता है वो सभी जगह सपोर्टेड है, क्योंकि वो सिर्फ क्वेरी टाइम के लिए बनता है। ठीक है, तो वो डेटा को जो डेटा इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो दैट्स द वन रीजन। और कहाँ पे हमें सीटी यूज करना चाहिए, जब भी हम इस तरह की कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाली कंडीशन के पहले वो वाले कस्टमर ले आओ जो काम कर रहे हैं, जब भी ये चीजें डेटा सेट छोटा है, राइट। एक तो ये है कि व्यूज में आपको यूज करना ही करना है, दैट इज वन कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि लेट से आप प्रोसीजर लिख रहे हो जहाँ पे आप टेम्परेरी टेबल भी यूज कर सकते हो, सिटी भी यूज कर सकते हो, राइट। दोनों चॉइस है आपके पास, तब आपको क्या यूज करना है। if you know if that you are working with the smaller data set जब हम बोलते हैं तो ऐसे डेटा सेट जिनकी रोज 1 मिलियन से कम होती हैं इन सीक्वल टर्म्स। ओके, मीडियम रेंज के जो डेटा सेट बोले जाते हैं जो 10 मिलियन रोज के आसपास होते हैं, और अगर 10 मिलियन रोज के ऊपर के डेटा सेट हैं दोज आर कॉल्ड बिग डेटा सेट, बिग टेबल डेटा सेट जब बोल रहा हूँ तो टेबल ही समझो आप उनको। तो अगर आपकी टेबल जो है वो अप टू 5 मिलियन है, यू कैन ऑलवेज, आपको पता है कि जो आप फिल्टर रिजल्ट लाने वाले हो सिटी में वो 5 मिलियन के आसपास ही होगा, और आप प्रॉक बना रहे हो, आप सिटी यूज कर सकते हो बड़े इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, मेमोरी इन मेमोरी यूज करेगा, बट इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज यूज सिटी। बट जब आपको लगे कि नहीं नहीं जो मेरी टेबल है बनने वाली है वो 50 मिलियन रिकॉर्ड लाएगी एज एन इंटरमीडिएट टेबल, तो अगर इंटरमीडिएट टेबल में ही आपके 50 मिलियन रिकॉर्ड हैं तो बेटर यूज टेम्परेरी टेबल इन प्रोसीजर्स। ओके, व्यूज में आपके पास एनीवे और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही यूज करना है। ठीक है, तो व्यूज जब आप लिखोगे, जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स व्यूज लिखोगे एनालिटिक्स में, देन यू विल फेस लॉट ऑफ परफॉर्मेंस चैलेंजेस, उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। जब एक ही सीटी का मल्टीपल रेफरेंस होता है बहुत चैलेंजेस आते हैं, और क्योंकि आप टेम्प टेबल वहाँ यूज नहीं कर सकते, सो यू नीड वेरी गुड स्किल अच्छी क्वेरी लिखने की, लाइक वेल रिटन क्वेरी इज नीडेड इन द कॉम्प्लेक्स व्यूज। ओके, तो अपने उसमें जाते हैं, स्मॉलर डेटा सेट हो और मल्टीपल कंडीशंस करनी है, हम वहाँ पे सीटी यूज करते हैं। जब भी हम विंडोज फंक्शंस के साथ काम करते हैं विद अ मीडियम और स्मॉल डेटा सेट्स, ऑलवेज यूज सीटी, इट्स वेरी इजी टू यूज सीटी विद विंडोज फंक्शन। ठीक है, आगे विंडोज फंक्शन के साथ एक सीटी का एग्जांपल करके दिखा देंगे। और जब भी कोई हेरारिकल प्रॉब्लम आती है, हेरारिकल डेटा निकालना होता है, हेरारिकल डेटा क्या होता है, जैसे कि सबसे बड़े एग्जांपल तो वही होता है कि एक जो एम्प्लॉय टेबल होती है उसमें एम्प्लॉय आईडी है एंड उसकी मैनेजर आईडी है, एंड जो मैनेजर जो होता है वो भी एक एम्प्लॉय ही होता है, राइट। तो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक रिलेशन होता है, राइट। तो अगर हमने इनर ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन में हमेशा यही एग्जांपल देखा है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजर है। सो या ऑफ कोर्स उस तरह के डेटा सेट में जहाँ पे आपको हिरारिकी निकालनी होती है, हिरारिकी निकालनी हो या हिरारिकल कंप्यूटेशन करना हो, या तो इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। ओके, सो कंप्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अभी लिख के देखना सीटी से। सो लिखता हूँ CT1 एज, मैं आपको
मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे सारे जो नंबर हैं वो प्रिंट कराने हैं 1 to 20 और 21, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि 1 सिटी एज ए काउंट, ठीक है। ये देखो मैंने सिटी लिखा, और मैंने एक इसका लिखने का तरीका होता है, हमेशा यूज़ करते हैं, अभी और डिटेल में समझते हैं। फ्रॉम सिटी 1, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। CNT1+1, इट्स वेरी इजी, यू कैन यूज़ वाइल लूप एज वेल। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही एक तरीका है। CT1, ये अपने मन से ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो हमने एक CT लिखा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको सेमीकोलन नहीं दिया है, इट्स गुड वे टू राइट। इसको आप लिखोगे तो ये ब्रेक होगा आफ्टर 100 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ये देखो ब्रेक हो गया, एरर देता है, बाद में समझेंगे कि ये क्या होता है आफ्टर 100 101। सो इसने 100 किया बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम 101, तो ये 100 वी स्टार्टेड फ्रॉम 1, सो इट्स 101 बट इट एग्जीक्यूटेड ओनली 100 टाइम। सो डिफॉल्ट जो कंडीशन है वो 100 टाइम एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अब आपने देखो कि मैंने बोला आप मेरे को काउंट करके दिखा दो 1 to 100, तो ये काम आप CT के थ्रू कर सकते हो, इसको हम रिकर्सिव CT बोलते हैं। तो जहाँ पे हेरारिकल डेटा करना होता है या इस तरह की प्रॉब्लम करनी हो, या फिर जैसे कि फिबोनाची सीरीज एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है कि किसी नंबर को, अगर मैं बोलूँगा आपको कि किसी नंबर, कोई गिवन नंबर है टेबल में, या उसको, या मैंने एक आपको बड़ा सा नंबर दे दिया और उसको आप ब्रेक करो बाइनरी नंबर में। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप रिकर्सिव CT यूज़ कर सकते हो, CT बेसिकली यूज़ कर सकते हो, उसका एक फॉर्म है रिकर्सिव CT, ठीक है। तो ये हो गया कि CT कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब समझ लेते हैं CT के टाइप। ओके, सो टाइप ऑफ CT, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ CT, मोस्टली there are only 2 टाइप ऑफ CT एंड रिकर्सिव CT, बट फिर भी इनको आसानी से समझने के लिए हम 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। सिंपल CT, जहाँ पे हम पहला CT बनाते हैं और उसको जस्ट अपनी फाइनल क्वेरी में यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल CT या सिंपलेस्ट CT। नेस्टेड CT क्या होता है, जहाँ पे एक CT बनाते हैं, देन एक दूसरा CT बनाते हैं सीरीज में, देन तीसरा CT बनाते हैं, और हो सकता है जो हमने पहला CT बनाया उसको यूज कर रहे हैं सेकंड में, जो सेकंड बनाया उसको थर्ड में यूज कर रहे हैं, या सेकंड थर्ड जब बनाया तो उसको फाइनल क्वेरी में यूज कर रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है, उसका एग्जाम्पल है ये वाला हमारा जो हमने किया। सो देखो हमने पहले, अगर मैं आपको बोलता कि मेरे को वो सिर्फ कस्टमर चाहिए जिन जिन जो टेरिटरी 1 and 4 में फॉल करते हैं, तो अगर आप इस क्वेरी को ऐसे लिखते कि भाई ठीक है, यहाँ से मेरे को सारे कस्टमर दे दो, राइट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कस्टमर जो कि फॉल करते हैं 1 and 4 में। दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट CT, सिंगल CT। इसमें क्या है, एक CT हमने बनाया एंड देन हमने बस उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट CT, सिंगल CT। अब आता है दूसरा नेस्टेड CT। नेस्टेड CT में एक तो CT जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं, तो आप देखो पहला CT हमने जब बनाया तो जो विद स्टेटमेंट है वो एक ही बार यूज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आप दूसरा CT बनाते हो तो सिर्फ आपको कॉमा देना होता है, वो ये बताता है कि दिस इज 1 टेबल एंड कॉमा के बाद से दूसरे कॉमा तक, यहाँ तक दिस इज सेकंड टेबल, ठीक है। तो जब CT2 बनाया, ठीक है, सीरीज में बनाया, तो अभी हमने देखो CT1 को यूज किया। हो सकता है CT1 का यूज यहाँ पे ना भी करते तो भी ये नेस्टेड CT बोला जाता, ठीक है, या सीरीज CT बोलते। देन CT3 बनाया, इस सीरीज जो CT3 बनाया हमने सीरीज में, we are not using CT2 inside but we are still using CT1 का रेफरेंस here, right, this one। और फिर हमने फाइनल क्वेरी में CT2 और CT3 को यूज करके इनको ज्वाइन किया, और हमने क्वेरी जो निकाल के दी उसमें हम कस्टमर जो हैं जो टेरिटरी 1 and 4 में फॉल करते हैं उनके टोटल जो ऑर्डर्स का काउंट है और उन ऑर्डर्स का जो टोटल सम है ऑर्डर अमाउंट का, वो दोनों निकाल के दिया। ओके, सो ये दो तरह के CT हो गए, और आता है थर्ड CT बोलते हैं रिकर्सिव CT। रिकर्सिव CTs आर कॉम्प्लेक्स वन एंड आई मीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट CTs, बिकॉज अगर आपको रिकर्सिव CT नहीं आते तो जो ये एम्प्लॉय और मैनेजर का लेवल निकालने की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की क्वेरीज देन विल बी वेरी बिग क्वेरीज, क्योंकि तरीका तो फिर भी हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ निकाल पाते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि रिकर्सिव CT नहीं होंगे तो हम एम्प्लॉय और उनका मैनेजर के लेवल नहीं निकाल पाएंगे, तब भी निकाल पाएंगे, बट मोस्टली आपको हमेशा पता है कि सब रिकर्सिव CT यूज करते हैं। तो रिकर्सिव CT क्या होता है, ऐसा CT जहाँ पे वो CT खुद को कॉल करता है, सेम एज फैक्टोरियल का जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते थे और हम बोलते थे रिकर्सिव फंक्शन, सो सेम एज अ रिकर्सिव फंक्शन, ये इसको बोलते हैं रिकर्सिव CT। और ये रिकर्सिव फंक्शंस के कुछ कुछ प्रोग्राम इसलिए हम इनसे लिख पाते हैं। इसमें क्या है, CT1 हम जब डिक्लेयर करते हैं तो देखो इन साइड CT वी यूज सेम CT,
है ना। जबकि अब उससे पहले के सारे एग्जाम्पल में जो आप सिटी बनाते हो वो सिटी के अंदर खुद ही नहीं यूज कर लेते, राइट। सिटी 2 के अंदर हमने सिटी 1 यूज किया, 2 नहीं यूज किया, 3 के अंदर भी हमने 1 यूज किया है। और जब फाइनल क्वेरी लिखते हैं तब कॉमन नहीं लगाते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल क्वेरी जब लिखते हैं तो कॉमन नहीं लगाना होता, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ से हमारी सीटी का स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है। देयर इज वन मोर गुड प्रैक्टिस कि हम अगर हमारा इससे ऊपर भी कोई स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो वी स्टार्ट विद सेमीकोलन, ठीक है, सीटी। और अगर जब व्यू क्रिएट करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं होती है। व्यू ड्रॉप कर देते हैं, जरूरत नहीं है। तो जैसे ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट है तो स्टार्ट विद सेमीकोलन, और अगर उसके बिना भी चल रहा है तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये व्यू ड्रॉप कर दिया। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सिंपल सिटी, नेस्टेड सिटी और रिकर्सिव, दीज आर टाइप ऑफ सिटीज, ठीक है, वो भी हो गया। अब थोड़ा सा अगर और आपको डीप ले चलते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो इस पे थे कि क्या सिटी होता है, क्यों होता है, सब क्वेरी क्यों नहीं लिख सकते, सिटी क्यों नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं, सब क्वेरीज हमेशा लिख सकते हैं, बट सिटी इज बेटर वे टू राइट क्वेरी, मोर एफिशिएंट वे टू राइट क्वेरीज, ठीक है। सिटी यूज क्यों करते हैं, अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम यूज कर ही नहीं सकते कुछ दूसरा, तो हमें सिटी या सब क्वेरी यूज करना है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें सिटी की जरूरत पड़ती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्रॉब्लम इज हेरारिकल प्रॉब्लम, जहाँ पे हम कस्टमर और एम्प्लॉय और उसके मैनेजर का मैनेजर लेवल निकालते हैं, ठीक है। देन कम्स द मोर थ्योरी, ओके, मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी अभी आपके सामने, टेम्परेरी टेबल और व्यू, जब दो व्यू बनाए जब मैंने, तो एक तो प्रॉब्लम ये सिटी के साथ में है, ये वाला पहला वाला जो था, ठीक है। ये वाला जो व्यू, जो दूसरा वाला व्यू क्रिएट कर रहे थे, दैट व्यू इज विद, सो ये वाला जो पहला वाली कंडीशन थी, ये सिटी, ठीक है। तो जो पहली वाली सिटी है, ये वाले सिटीज के एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें हमने सिटी यूज किया, और सेम प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने टेम्परेरी टेबल यूज किए, ये वाले, ठीक है। और दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। जस्ट ओनली थिंग इज कि जो टेम्परेरी टेबल हैं वो स्टोर होते हैं फिजिकली टेम्प डीबी में, ओके, एमएस एसक्यूएल में। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ठीक है, अगर वो तो पता चल गया कि टेम्परेरी टेबल वहाँ पे स्टोर होते हैं, बट फिर सीटी का डेटा रन टाइम, ये भी सही है कि सीटी सिर्फ रन टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो सीटी का डेटा स्टोर कहाँ होता है रन टाइम के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पूरी क्वेरी को सीक्वल रन करेगा तो पूरी क्वेरी को एक साथ रन करेगा, राइट। पहले कंपाइल करेगा, फिर ऑप्टिमाइजर को देगा, क्वेरी प्लान बनाएगा, उसके बाद क्वेरी प्लान के बाद कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। 3-4 स्टेप में एसक्यूएल रन करता है, तो थ्योरी पढ़ सकते हो आप ज़्यादा और जाके। तो जब पहला पार्ट है वहाँ पे हमने जब ये टेबल बना ली और इसके 8216 जो रोज आए, तो ये भी रोज हैं, ये भी डेटा है, तो इसको होल्ड करने के लिए यू नीड सम स्पेस आइदर इन हार्ड डिस्क और मेमोरी, राइट। मेमोरी मीन्स योर रैम। तो सीटी का रन टाइम में डेटा स्टोर कहाँ होता है, दिस इज वन क्वेश्चन, ओके। टेम्प टेबल की तरह ये टेम्प टीबी में स्टोर नहीं होता है, ये इन मेमोरी स्टोर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन मेमोरी स्टोर होता है, ठीक है। इन मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जो सर्वर की रैम मेमोरी होती है उसके लिए उसमें स्टोर होता है। अब क्योंकि ये पढ़ने के लिए अभी हम एग्जांपल में अपने लोकल जो मेरा कंप्यूटर है उसमें मेरा सर्वर रन कर रहा है, तो ये मेरा इस समय जो लैपटॉप की रैम है वहां से मेमोरी लेगा, ठीक है, मेरे कंप्यूटर की रैम से मेमोरी में स्टोर होगा ये। क्यों, कब तक होगा, जब तक आपका डेटा सेट सिर्फ इतना है, इतना उसका जो, जैसे इसमें सिर्फ 8000 रोज हैं और इसको हार्डली अभी 8 MB या लेट से 20 MB की जरूरत है इतना डेटा स्टोर करने के लिए। 20 MB सफिशिएंट, अगर आपके लैपटॉप में 16 GB या 8 GB मेमोरी है चलेगा, राइट। जब आपके सर्वर में इतनी मेमोरी बचती है कि वो डेटा को इन मेमोरी स्टोर कर सके, सीटी जो एसक्यूएल डिसाइड करता है, ओके, तो वो हमेशा उसको इन मेमोरी रखता है सीटी के डेटा को। जब आपकी क्वेरी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है और डेटा सेट ऐसा हो जाए कि बड़ा हो जाए और उसके पास इतनी मेमोरी ना हो, और ऐसा भी नहीं होता कि वो एसक्यूएल सर्वर पूरी मेमोरी उठा के दे देता है सीटी को, नहीं, ऐसा नहीं करता। वो उतनी मेमोरी यूज़ करेगा जो उसके जो आपके ओएस को और कॉमन प्रोसेसेस को रन होने के लिए चाहिए, उसको वो छोड़ देगा। एसक्यूएल के दूसरी क्वेरीज को रन होने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो भी छोड़ देगा, उसके बाद की जो मेमोरी है उतनी पूरी मेमोरी असाइन कर सकता है वो एक सीटी या एक क्वेरी को, ओके। और यहाँ पे
अभी मैं बताता हूँ कि कैसे पता कर सकते हो आपकी ये कितनी, इसमें कोई ऐसे लिमिट नहीं है, बट वो लिमिट क्या है, वो लिमिट आपके सर्वर की लिमिट पे है। अब जब हम क्लाउड की बात करते हैं कि एज्योर क्लाउड या AWS या कोई भी क्लाउड सर्विस में जब आपका एसक्यूएल सर्वर रन करता है, तो वहाँ पे हम पूरा सर्वर तो खुद हम ऑन करते नहीं, बट हमारे पास वहाँ पे होता है कि हमारी मेमोरी कितनी है, यानी कि रैम कितनी हम ले रहे हैं, और वी कोर कितने ले रहे हैं, यानी कि CPU कितने खरीद रहे हैं, वही होता है राइट सब जगह। जब भी आप क्लाउड से सर्वर खरीदते हो तो वो आपका पहले ही डिसाइडेड होता है। तो अगर आपके पास मेमोरी है तो सीटी जो होता है वो इन मेमोरी स्टोर करता है डेटा को। बट जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी और ज़्यादा डेटा सेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पिल ओवर। उस केस में जो डेटा आता है, ठीक है, जो डेटा जाता है वो टेम्परेली हार्ड डिस्क में भी एसक्यूएल करता है, बट उस केस में जो परफॉर्मेंस है वो हिट होती है क्वेरी की, क्वेरी स्लो हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आपके बहुत बड़े डेटा सेट हो जाएं और आपको लगे कि इसको मैं टेम्प टेबल यूज़ कर सकता हूँ, तो यूज़ टेम्प टेबल अगर आपका इंटरमीडिएट डेटा सेट बड़ा हो रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि मैं नहीं, मेरे को तो व्यू बनाना है, तो फिर मैं व्यू बनाना है तो मैं उसका क्या करूँ, तो फिर उसके केस में हम ये कर देते हैं कि जो इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक है एनालिटिक्स में, जो आप व्यू में लिख रहे हो उसको मैं एक प्रॉक में ले जाऊंगा और उस प्रॉक को रन करके मैं वो डेटा एक टेबल में डाल दूंगा और फिर सिंपल उस टेबल से सेलेक्ट करके एक व्यू बना दूंगा। और उस जो मैंने प्रॉक लिखा उस प्रॉक को दिन में, डिपेंडिंग ऑन की नीड क्या है, कि सपोज आप उसको रिपोर्ट में यूज कर रहे हो, रिपोर्ट दिन में 2 बार रिफ्रेश हो रही, तो मैं उस प्रॉक को भी दिन में 2 बार रिफ्रेश कर दूंगा, चला के उस टेबल को रिफ्रेश कर दूंगा। अगर दिन में 10 बार रिफ्रेश हो रही है तो 10 बार रिफ्रेश कर दूंगा। स्टिल वी कैन मैनेज इट राइट, कि अब बहुत कॉम्प्लेक्स आप लिख रहे हो व्यू, और उसके बढ़िया है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लिख दो जहाँ पे आप टेम्परेरी टेबल यूज कर लो उस तरह के डेटा सेट्स के लिए। इट्स अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि आपका व्यू बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो फिर क्या करें। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो मैं इसको एक टेबल में स्टोर कर देता हूँ डेटा प्रॉक बना के, एंड इन प्रॉक आई कैन यूज टेम्परेरी टेबल, आई कैन राइट दिस वेरी इजिली। बट देन द क्वेश्चन अराइज कि नहीं नहीं, मेरे को तो व्यू से लाइव डेटा मिलता है, ठीक है, और आपका जो क्वेरी होगी, बट जो आपकी जो टेबल आप बनाओगे उसमें लाइव डेटा नहीं आएगा। बट आप अगर दिन में उसको 4 बार, तो आप पूछोगे ठीक है तो आप रिपोर्ट कितनी बार रिफ्रेश करते हो, वो बोलेगा 2 बार, तो बोलो ठीक है तो मैं 2 बार अपना प्रॉक रन कर दूंगा, तो आपका ऑलमोस्ट लाइव डेटा की तरह ही आएगा। वी कैन स्टिल मैनेज। आप इससे तो अच्छा ही है कि आपकी रिपोर्ट रिफ्रेश होने में 2 घंटे लग रहे हो, टाइम आउट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट व्यू। इट्स बेटर की हैव सम वॉट लाइव डेटा। ओके, सो दैट्स अ सिचुएशन। फिर ये पहला क्वेश्चन हो गया कि सीटी का डेटा कहाँ स्टोर होता है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेमोरी। जब बोलते हैं कि इन मेमोरी स्टोर होता है तो इन मेमोरी तो ठीक है, बट कहाँ मेमोरी में कितना लिमिट है फिर, राइट। सो उसको कैसे देख सकते हैं, राइट, वो हम मैं अपने कंप्यूटर में आपको करके दिखा सकता हूँ कि वो लिमिट कहाँ पे होती है। वो लिमिट होती है, अगर आप कंप्यूटर में जाओगे, MS SQL सर्वर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में जाओगे और इस प्रॉपर्टीज में आप चेक करोगे मेमोरीज में जाके, दिस इज द लिमिट व्हाट यू हैव योर सर्वर इज हैविंग। ओके, डिपेंडिंग ऑन आपका सर्वर कि पर जो क्वेरी की मेमोरी है वो मिनिमम मेमोरी कितनी है, मैक्सिमम हम लोग देते नहीं, और दिस इज द मैक्सिमम असाइंड मेमोरी इन MB। ये आप चेंज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके सर्वर के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर। ओके, सो यू हैव टू गो टू प्रॉपर्टीज, सर्वर प्रॉपर्टीज, नॉट डेटाबेस प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये आप सर्वर लेवल पे सेट करते हो। ओके, मैक्स सर्वर मेमोरी लिमिट कैसे हम सेट कर सकते हैं सर्वर लेवल पे, सेट कर सकते हैं और होती क्या है। ओके, इट इज़ नॉट अनलिमिटेड मेमोरी, इट्स अ लिमिटेड मेमोरी। ओके, और जब ये मेमोरी ओवर फ्लो हो जाती है तो इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। तो जो फिर जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में भी राइट करता है सीटी। इट्स नॉट दैट इट ऑलवेज रिमेन्स इन मेमोरी, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट एज वेल। ठीक है, एंड देन हमारे पास इसके अगर ये देखनी है और इसको सेट करना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी मैक्स सर्वर मेमोरी की, आई हैव सम क्वेरीज हियर। यस, दिस इज हाउ वी कैन सी इट। ओके, हम इसको इसके लिए बोलते हैं रिकन्फिगर, SP रिकन्फिगर जो सिस्टम प्रोसीजर है, इसको रन करके मैं कहीं पे आपको ये जो क्वेरीज हैं ये दे दूंगा। ठीक है, आप इनको रन कर सकते हो। इनको मैं मास्टर के साथ जब रन करता हूँ तो आप देखो इसका आउटपुट। ठीक है, पहले हम रन करते हैं इसको, इसके एडवांस ऑप्शंस को ऑन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। तो आई विल से SP रिकन्फिगर यूज़ करके, SP कॉन्फ़िगर यूज़ करके रिकन्फिगर करता हूँ मैं। सो एडवांस ऑप्शन 1, then so max server memory, right, and this is the maximum server memory we can see from the commands as well। उसके बाद में इसको ऑफ कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको UI से प्रॉपर्टीज में ऑप्शन उसका दिखाई दिया यहाँ पे जाके, मेमोरी पे जाके। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन हो गए कि डेटा कहाँ पे सेव होता है, कितनी मेमोरी लिमिट होती है, राइट, और कैसे देखते हैं। देन देयर कैन बी वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड बिटवीन टेम्प टेबल एंड CT एंड सब क्वेरीज।
बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर लोग जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है एडवांस एसक्यूएल के बारे में, वो ये सोचते रह जाते हैं कि मैं सीटी यूज़ करूँ या टेम्परेरी टेबल यूज़ करूँ, राइट। सो इसका आंसर मैं दे चुका हूँ पार्टली, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में आपसे बोला गया है कि आपको व्यू बनाना है सिर्फ, ओके, सो इफ़ यू आर राइटिंग क्वेरी फॉर व्यूज, आप वहाँ पे CTE यूज़ कर सकते हो, टेम्प टेबल नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको CTE ही यूज़ करना है, ठीक है। फिर आता है CTE एंड सब क्वेरीज के बीच में। वो आपने देख लिया है कि जब छोटी सी क्वेरी लिखना है वी कैन यूज सब क्वेरीज, जैसे कि वेयर कस्टमर नॉट इन, और इन के अंदर लगा दिया कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर फ्रॉम टेबल कस्टमर्स, लाइक दैट। उस केसेस में आप सब क्वेरी इजिली लिख सकते हो, आपको CTE लिखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे सिंगल सब क्वेरी की बात आती है। बट जैसे ही आपको ये लगे कि मुझे एक कोई कॉमन टेबल है जो बार बार यूज करना है और मुझे व्यू में ही लिखना है, देन इट्स बेटर टू यूज CTE। अगर आपको बहुत बड़ा डेटा सेट है तो CTE अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेस्टेड CTE भी हमें एक लिमिट तक ही लिखने चाहिए, मोस्टली 5 और 6 CTE एक के बाद एक जो आते हैं, मतलब सीरीज CTE और नेस्टेड CTE। एक बार में एक क्वेरी में 5 होने चाहिए, उसके बाद आप उसको ब्रेक कर सकते हो दूसरे CTE में, फिर से एक CTE विद स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट डेफिनेटली वी नो कि टेम्प टेबल हम प्रॉक्स में यूज कर सकते हैं, और प्रॉक्स में छोटे डेटा सेट्स के लिए आपको CTE यूज करना चाहिए। बड़े डेटा सेट जहाँ पे आपकी जो फिल्टर क्वेरी या जो इंटरमीडिएट क्वेरी बन रही है, वहाँ पे आपको टेम्प टेबल यूज करना चाहिए। टेम्प टेबल का एक और बेनिफिट होता है यूज करने का कि टेम्प टेबल बिहेव्स लाइक अ फिजिकल टेबल। उसमें आप अपने इंडेक्सेस और कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, जो कि आप CTE में अलग से फोर्स नहीं इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपने टेम्प टेबल अभी मैंने बना के दिखाया था, राइट। तो जो हमने टेम्प टेबल बनाई वो टेम्प DB में सेव हुई थी, तो क्योंकि वो टेम्प DB में सेव्ड है, इसलिए आप उनके ऊपर अगर इंडेक्स बनाना है तो जैसे नॉर्मल इंडेक्स बनते हैं आप उसी तरह से इंडेक्स बना सकते हो टेम्प टेबल के ऊपर। सो वो टेम्प टेबल में टेबल बनेगी, उसके ऊपर इंडेक्स बनेंगे। जैसे ही उसका सेशन क्लोज होगा उस क्वेरी रन टाइम का, यानी कि जैसे ही प्रॉक रन होके खत्म हो जाएगा, वो टेबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो इंडेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो इंक्लूडिंग इंडेक्स ऑन द टेम्प टेबल। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कब CTE यूज करें और कब टेम्प टेबल यूज करें, ठीक है। सो व्हेन यू आर राइटिंग प्रॉक, डेफिनेटली गो फॉर टेम्प टेबल्स। For smaller queries, go for CTE, but in views you have no choice other than using CTE, ठीक है। सब क्वेरीज आपको मिनिमल यूज करनी चाहिए फॉर फॉर स्मॉल क्वेरीज, और लाइक जस्ट वन क्वेरी इन वेयर कंडीशन और जस्ट वन डेराइव्ड टेबल, दैट वी कैन यूज, बट मोस्टली वी शुड अदरवाइज अवॉइड इट। कहीं कहीं को रिलेटेड क्वेरीज की जरूरत पड़ती है, को रिलेटेड सब क्वेरीज की, जहाँ पे जो इनर क्वेरी होती है वो आउटर क्वेरी को रेफरेंस करती है। ऐसी सिचुएशंस में हम सब क्वेरी भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अ ब्रॉड टॉपिक, वो एक कोई अलग सब क्वेरीज का एक बड़ा सेशन दूसरा वीडियो बना दूंगा, उस पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज हियर आई वांट टू कवर CTE इन डिटेल, नॉट सब क्वेरीज, ओके। फिर आता है एक वन मोर क्वेश्चन, कैन यू अपडेट अ टेबल यूजिंग CTE? दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसका एग्जांपल से देख लेते हैं। सो लेट्स से ये वाला क्वेश्चन हो गया था। मैं आपको सारे एग्जांपल खुद से अभी सिंपली टेबल बना के दिखाने का ट्राई करता हूँ। सो लेट्स से क्रिएट अ न्यू टेबल, सो क्रिएट टेम्प टेबल, ओके, नॉट अ फिजिकल टेबल, बिकॉज टेम्प टेबल भी उसी की तरह बिहेव करती है, राइट। सो लेट्स से टेम्प 1 क्योंकि टेम्प हमने क्रिएट करी थी, एंड जस्ट हैव इंट id as int and one more column name. This is a very simple table. You can always test all the concept on simple tables, need not to complicate, okay। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं होती है हर समय, आप जितना पॉसिबल हो सिंपल क्वेरीज और सिंपल टेबल से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। सो इंसर्ट इनटू टेबल 1, सेलेक्ट 1 AA, insert 2 BB, insert 3 insert. So we inserted 3 rows here, okay। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि क्या CTE को यूज करके हम टेबल को, क्वेश्चन ये है, कैन वी यूज CTE टू अपडेट अ टेबल। देखते हैं कैसे कर सकते हैं कि नहीं। CTE1 as
मैं इस टेबल से क्या करता हूँ, ये जो अभी अभी हमने को टेबल बनाई, इसी क्वेरी से टॉप 1 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, टॉप 1 एस्ट्रिक, दिस इज स्मॉलर क्वेरी। तो हमने बोला कि पूरी क्वेरी में से मेरे को सिर्फ टॉप 1 चाहिए बिना किसी ऑर्डर वाइज के, तो जो जिस तरह से डेटा स्टोर्ड है उसी तरह से रहेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टॉप 1 रो आई, इसमें जो नेम है वो ए है अभी स्ट्रिंग में, लेट्स अपडेट इट टू ए। ओके, सो अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे हम लोग अपडेट करते हैं, अपडेट टेबल टी, सेट भी लिखते हैं, सेट बाद में लिखेंगे, ठीक है, कॉलम का नेम फ्रॉम ct1, पहले ct1 लिख लेते हैं और फिर बोलते हैं इसका कॉलम का नाम हमने दिया था नेम सेट, और टेबल का नाम टी दिया है तो गिव एलियास एज अ टी, देन से टी डॉट नेम इक्वल टू a. So this is what we want to set, okay, update table t, update t, set t equal to name from ct1. Okay, now run this query, one row affected, okay, select, अब देखो क्या आया, अपडेट हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ct से हम जो हमारी मेन टेबल है जो ct को रेफरेंस करती है उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली डिलीट भी कर सकते होंगे, वो आप ट्राई कर लेना, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कैन वी अपडेट अ टेबल यूजिंग ct, कर सकते हैं। अब इसका आप थोड़ा सा रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल आपको समझना है, राइट, सो मोस्टली हमें अब हमेशा होता है कि ओके सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है, राइट, सो व्हाट वी यूज कि विंडो फंक्शन बनाया एंड विंडो फंक्शन से हमने सेकंड हाईएस्ट सैलरीज निकाल दी, एंड लेट्स से क्वेश्चन ये है कि जो भी सेकंड हाईएस्ट सैलरीज आ रही हैं उनमें $1000 का इंक्रीमेंट कर दो आप फाइनल सैलरीज में, राइट। नाउ इट्स इजी, आप वो वाले सारी जो रोज होंगी आप उनको ct में ले आओगे एंड देन उन ct को बस आप जैसे अभी अपडेट किया है उसी तरह से अपडेट करके देख लोगे, राइट, दैट कैन बी अ गुड सिनेरियो। इस तरह के कोई भी सिनेरियो जो ct के अंदर सब क्वेरी आ रही है, मतलब ct के अंदर हम हमेशा जनरली सब क्वेरी ऐसे करके बनाते हैं लाइक डेराइव टेबल की तरह, उसको अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी एग्जांपल करके दिखाया, एंड देन दिस विल परसिस्ट, आई मीन अब ये इस टेबल में ये रहेगा, अब ये टेम्प टेबल है तो टेम्प टेबल की तरह रहेगा, बट ये डेटा इसमें रहेगा। अगर ये फिजिकल टेबल होती तो ये ए अपडेट हो गया फिजिकल टेबल में, करेक्ट। सो दिस इज ट्रू दैट फ्रॉम ct वी कैन अपडेट फिजिकल टेबल। देन फिफ्थ है okay, update example is done, so this is same. Then example of recursive ct, okay, so हम recursive ct के कुछ example लेते हैं, right, so recursive ct का पहला example लेते हैं that Fibonacci series, right, so I think I have these questions we have written, yeah, why to write again and again, yes, yeah, so let's take this, इसको समझाता हूँ मैं आपको डिटेल में, ठीक है। फिबोनाची सीरीज, अभी इसको वेरिएबल को छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा रिकर्सिव ct समझने की कोशिश करते हैं। रिकर्सिव ct का एक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाया था कि रिकर्सिव ct वो ct होते हैं जो अपने आप को ही कॉल करते हैं लाइक दिस, ओके। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, आपको ऐसे यूज़ करना है। जब हम इसको रन करते हैं, राइट, तो ये 100 रन के बाद खुद से ब्लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं मैक्स रिकर्सन। सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड मैक्स रिकर्सन। सो ये एक्चुअली एक हिंट है, ऑप्शन है, अगर आप इसको दोगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अभी ये 100 टाइम रन हुआ है, इसको इस सेटिंग को, क्योंकि ये डिफॉल्ट था, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैक्स रिकर्सन, और इसको मैं बोल देता हूँ 100 की बजाय 10। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक हुआ एंड देखो ये 10 बार ही रन हुआ, 1 से स्टार्ट होता है तो इसलिए 11 आया है, नहीं तो ये 10 बार ही रन हुआ है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ओके, ये एक रो ज्यादा है, ये 10 ही बार रन हो रहा है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, सो क्योंकि ये यूनियन ऑल में है, राइट। सो फर्स्ट थिंग
दैट डिफॉल्ट मैक्स रिकर्सन इज 100। ये इसलिए होता है ताकि आपका जो, अगर आपने कहीं पे सिटी लिखा हुआ है और आपने वेयर कंडीशन मिस करी तो ये आई मीन ये हमेशा के लिए ना चला जाए, नहीं तो ये क्वेरी हमेशा के लिए चली जाती है। उसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मैक्स रिकर्सन 0 देते हो तो ये क्वेरी फिर ये ब्रेक नहीं होगी, ये चलती जाएगी। मैक्सिमम 10 इज एक्सहॉस्टेड। ठीक है, अब ये देखो ये आपकी क्वेरी चलती जाएगी ये वाली, बिकॉज हमने इसका जो मैक्स रिकर्सन था वो इनफाइनाइट कर दिया, और ये आपको जितने नंबर तक होता रहेगा ये ब्रेक करेगा, फिर आपको ये फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए ये डिफॉल्ट 100 दी गई है, बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मोस्टली अप टू 20 काफी होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमें जनरली इस तरह की क्वेरीज में हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा के इसको ब्रेक कर देते हैं और बोलते हैं कि जब सी काउंट है इट्स लेस देन, जैसे ही ये 10 से या 11 से बोल देंगे बड़ा हो जाए तो आप इसको रोक देना, राइट। सो लेट्स डू दिस। अभी क्या होगा, अब ये इसमें आपको एरर नहीं आएगा, राइट। सो इट इज नॉट दैट वी कैन ऑलवेज गेट एरर, हम इसको वेयर कंडीशन के थ्रू इस तरह से रोक सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया 0, जब इसको यूनियन ऑल किया सो 0 पास हुआ, यहाँ पे ये 0 था, 0 + 1 1 हो गया, राइट, क्योंकि इस समय सिटी में 1 था, तो पहली वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू 1, देन थर्ड वैल्यू के बाद यहाँ पे ये 1 हो गया था काउंट, तो अब 1 + 1 2 हो गया, एंड देन सो ऑन। ये कब तक जाएगा, जब तक काउंट का वेयर कंडीशन हर बार चेक करेगा व्हेन इट इज लेस देन 11। तो जैसे ये लेस देन 11 के बाद अब जब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। जबकि आपका मैक्स रिकर्सन 20 था तो ये आपको यहाँ पे एरर नहीं आया। बट अगर आप मैक्स रिकर्सन फिट करोगे 5 तो यहाँ पे अब आपको सोच रहे हो कि ये 10 बार लूप चलेगा, बट ये चलेगा नहीं क्योंकि आपने इसको फोर्स किया है 5 के बाद, तो ये 5 के बाद ही ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग टू रिमेंबर दैट बाय डिफॉल्ट इट इज 100, और आप अपनी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग, आप ये जो यूनियन ऑल है इसको यूनियन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्री डिफाइंड, आप इसको कोशिश करो यूनियन ऑल करने की, या आप ऐसे यूनियन ऑल नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे यूनियन नहीं कर सकते, दिस विल बी यूनियन ऑल। इसका रीजन ये है कि ये रो एंड देन ये रो, जब इसमें +1 या आप कुछ कर रहे हो तो इट मीन टू बी डिफरेंट, तो हमें पता चल रही है कि दो रो डिफरेंट हैं तो फिर वो डिस्टिंक्ट ऑलरेडी हैं, तो यूनियन ऑल ही यूज होगा। अगर यूनियन यूज करते हो तो क्या करता है कि एसक्यूएल का जो क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है वो उसको डिस्टिंक्ट करने लगता है, तब तक फिर वो एक लूप और चल जाता है। सो इट बिकम लाइक इट्स टू हैवी फॉर ऑप्टिमाइजर। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट दिस इज डेफिनेशन दैट इट विल ऑलवेज यूज यूनियन ऑल, नॉट यूनियन। दिस इज ऑल्सो important. Okay, this point is important. You can use where condition, you can use max recursion. One more thing I think which like nobody will tell you, that यहाँ पे अगर आप चाहो कि मैं ये जो आपने CT1 किया इसी को CT1 से फिर से ज्वाइन करें तो इसको A बोल दें। I mean this is situation of self join, right? CTEP and then आप इसको ट्राई करो कि यहाँ पे ऑन ए डॉट, तो आप इसको ना एक से ज़्यादा बार यानी कि यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इसको और सिंपल टर्म में बोलें तो ऐसे बोल दें कि ये वाला क्वेरी था CT1 + 1 एंड देन एक और यूनियन ऑल लगा लेते हैं ये वाला, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब जो काउंट है उसमें 1 ऐड करके इसको जोड़ लें कि हाँ ये वाला लेस देन 11 हो। इसको रन करने का ट्राई करते हैं क्या देता है। अब देखोगे ये ऐसे 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 जाता है, राइट। तो अब देखना पड़ेगा कि ये इसने 20 फॉलो किया या 32 कैसे आ गए, राइट, वो देखना पड़ेगा। दिस इज वन मोर थिंग आई मीन वी नीड टू remember, but one thing what I want to tell you that join CTE1 B on A dot, this is not a good example but let's say अगर कुछ ऐसा आता है can we use it? I think it's like double reference of same city is not allowed. Yeah, you say CT1 is multiple recursive reference, it is not allowed. So this is also a thing that within the CTE you cannot use the CTE in join. I mean you cannot give two reference of CTE. So एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. So this is not allowed that within one query you give two references. So this is not allowed.
ये भी एक चीज याद रखने की है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रिकर्सिव सीटी, जहाँ पे रिकर्सिव सीटी खुद को ही कॉल करता है। इट इज सेम लाइक रिकर्सिव फंक्शन इन अदर लैंग्वेजेस। ओके, दिस इज डन। नाउ let's example of CT, how useful example we can make of, right? तो एक फिबोनाची सीरीज आप सबको पता है, राइट? फिबोनाची सीरीज होता है ए होगा, बी होगा, एंड देन द थर्ड नंबर विल बी ए प्लस बी, एंड देन उसके पीछे वाला दो, देन अगेन ए प्लस बी, एंड देन अगेन ए प्लस बी, राइट? दैट्स द सिंपल डेफिनेशन वी डू, कि जो भी होता है नंबर, वो लास्ट के दो नंबरों को हम सम करते चले जाते हैं। दैट इज आवर फिबोनाची सीरीज, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी स्टार्ट विद लेट्स से 0 एज वैल्यू, एंड देन 1 as a next value and 1 as a position. Okay, then union all किया, next value, फिबोनाची सीरीज में जोड़ा हमने ये और ये, ठीक है। दिस इज सिंपल एग्जांपल, और इसको रन करते हैं। सॉरी, इसको हमें 20 देना चाहिए था, और यहाँ पे अप टू 15 काफी है, बड़ी सीरीज हो जाएगी। तो अब आप याद देखोगे, वी स्टार्टेड विद 0 and 1, तो 0 and 1 तो पहले जब यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं तो 0 तो रहा, फिर वैल्यू 0, देन 1 आया, 0 और फिर 0 and 1 का प्लस 1 आया, देन 1 + 1 का प्लस 2 आया, फिर 2 और प्लस का 1 3 आया, 3 and 2 का सम 5 आया, 5 and 3 का 8 आया, and this is our Fibonacci series. From here we can just control, okay, how many time we can run, we wanna run it. If you will not give this, then you can control it with the max recursion, but with max recursion you will get a error. Error means अगर आप इसको बिना इस कंडीशन के प्रॉक में यूज करोगे तो आपका प्रॉक सक्सेसफुली रन नहीं होगा, इट विल गिव यू एरर। बना के दिखा देता हूँ मैं। जैसे आपको लग रहा है कि अगर आप इसको नहीं देते और ये 15 लेट से यहाँ पे दे देते हैं, राइट, तब भी ये इसको हैंडल कर रहा है। फिबोनाची सीरीज में हमने समझा, वी स्टार्टेड विद 0 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू हमने 1 ले ली, एंड देन पोजीशन 1, राइट, एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, अभी जो नेक्स्ट वैल्यू आ गई थी उसको यहाँ पे ले लिया, एंड देन जो फिफ्थ वैल्यू थी उसमें नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर दिया, एंड देन पोजीशन को एक बार बढ़ाते गए। इसकी तो ऐसे जरूरत है भी नहीं पोजीशन की, हम पोजीशन को ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं, इसको बस ऑर्डर बाय पोजीशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, अगर हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर नहीं खराब करेगा ये तो। एंड विद इन CT यस यू कैन नॉट यूज ऑर्डर बाय, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, तो ये फिर भी आ रहा है और सेम आ रहा है, तो और उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। ये हमने 15 दिया। अब अगर आप ये बोलो कि ठीक है मैं वेयर कंडीशन नहीं यूज करता और इसके साथ हमारा ये यूज हो रहा है, खुद ही इसको हैंडल कर लेगा एसक्यूएल, इसको एसक्यूएल हैंडल कर लेगा। क्रिएट प्रॉक, लेट्स से डीबीओ के अंदर टेस्ट यूएसपी टेस्ट CT1 as, let's create things. I hope you know how to create proc, but this is very simple proc. We created this, and how to run proc, you can just write execute and proc. इसको रन करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉक रन होगा, वैल्यू आएगी, बट ये हमेशा एरर देगा। तो अगर आप इसको डेटा एनालिटिक्स में कहीं भी यूज कर रहे हो तो ये आपको एरर देगा। तो ये एरर के साथ क्योंकि प्रॉक रन हुआ है तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉक रन, राइट। सो अगर आपकी पाइपलाइन या कहीं पे भी आपने इसको यूज किया तो वो पाइपलाइन फेल हो जाएगी। तो आप उसको इस तरह से नहीं, आपको नहीं, आप ऐसे हैंडल तो हो जाएगा वो एसक्यूएल इंटरनल पर्पज से, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ गुड वे टू हैंडल इट। ओके, तो आपको हमेशा यहाँ पे वेयर कंडीशन देनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, वैल्यू होती है और नेक्स्ट वैल्यू होती है, फिर 0 और 1 तक तो ठीक है, फिर 0 और 1 का जो सम आता है 1, वो हम यहाँ पे दे देते हैं नेक्स्ट वैल्यू में, और फिर हम वही कर रहे हैं, बार बार दोनों को सम करते जा रहे हैं। जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे ले रहे हैं और उसको सम करते जा रहे हैं। और यहाँ से हमें वैल्यू क्या चाहिए, फिबोनाची से सिर्फ फिन वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बड़ी सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज अ वे हाउ वी कैन राइट द प्रॉक। ओके, अब यहाँ पे अच्छा है कि पोजीशन आप लेके चलो, पोजीशन यहाँ पे ले लो और यहाँ पे पोजीशन +1 कर लो। 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल। ओके, देन एम्प्लॉय मैनेजर लेवल एंड मैक्स रिकर्सन इन केस ऑफ हायरार्की। यस, अब हम
एक तो हायरार्की का बात समझते हैं। हायरार्की वाली जो प्रॉब्लम है, दैट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वी क्रिएटेड टेबल, ये टेबल क्रिएट करी है मैंने, बहुत सिंपल टेबल है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल जो है, इसमें आप देखोगे कि ये सारे एम्प्लॉय के आईडी हैं, एम्प्लॉयज़ के नेम है एंड उनके मैनेजर का आईडी है। अब हमें पता है कि मैनेजर जो होता है वो भी एम्प्लॉय होता है, राइट? सो लाइक फॉर एम्प्लॉय आईडी 1 जैसे कोई मैनेजर नहीं है तो वो सीईओ है। सो लेट्स से फॉर एम्प्लॉय आईडी 2 हु इज द जीएम, एंड उसका जो एम्प्लॉय आईडी 1, मैनेजर आईडी 1 है, इट मीन्स उसका सीईओ एज अ मैनेजर है, राइट? फॉर 3 सेम, सीईओ इज द मैनेजर। फॉर द एम्प्लॉय आईडी 4 दिस जीएम इज द मैनेजर, लाइक दिस। अब हमें क्या चाहिए है, लेट्स से हमें एक टेबल चाहिए है। वो टेबल क्या करे कि हमें इस, अभी जैसे आईडी, ये तो एम्प्लॉय टेबल हो गई, हमें एक एम्प्लॉय मैनेजर टेबल चाहिए, एम्प्लॉय मैनेजर हायरार्की टेबल चाहिए समझो। उसमें हमें एक और कॉलम चाहिए है जो ये बताएगा कि uh, कौन सा मैनेजर किस लेवल पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जॉन का, तो जॉन का जो मैनेजर है वो 4 है। हु इज 4? अमित, ठीक है? तो जॉन जिसका आईडी 9 है, उसका डायरेक्ट मैनेजर तो अमित है 4, राइट? बट अमित का भी कोई मैनेजर होगा, तो अमित का मैनेजर यहाँ पे देखते हैं हम कौन है, 2। 2 कौन है? GM1। तो अमित का मैनेजर है 2, GM1। और 2 जो है GM1, उसका मैनेजर कौन है? 1, CEO। तो हमें इसकी, जॉन की पूरी हायरार्की चाहिए, राइट? तो हमें एक टेबल मिलेगी जिसमें रोज रिपीट होंगी। अभी 9 एक बार आ रहा है, ये डायमेंशन टेबल है, लेकिन वो जो मैपिंग टेबल होगी उसमें सारे मैनेजर लेवल होंगे। तो हमें पूरी हायरार्की चाहिए, राइट? तो अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, राइट? और ये सिंपल टेबल है, इससे समझ सकते हैं, बट इस टेबल को बहुत डिफिकल्ट किया जा सकता है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स को, जिनको बोलते हैं हायरार्की प्रॉब्लम, इनको सीटीई की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिना सीटीई के भी सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट जॉइन के उससे, बट वो बहुत लेंदी क्वेरी हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एम्प्लॉय का लेवल किस लेवल तक जाएगा, राइट? बड़ी कंपनीज में लाइक 15-16 लेवल तक जाता है या 10 लेवल तक जाता है। जो जूनियर, जो इंटर्न होते हैं, लाइक ट्रेनी लेवल से लेके सीईओ लेवल तक, तो 10 से 12-15 तक हायरार्की में जाता है, राइट? मैनेजर लेवल। तो क्योंकि वो मैनेजर लेवल वेरिएबल होता है, इसलिए लेफ्ट जॉइन से वो बहुत ही लेंदी क्वेरी होगी और ट्रिकी भी हो जाती है, ठीक है? यू कैन गूगल एंड ट्राई इट, बट रिकर्सिव सीटी इज द बेस्ट वे। तो इस प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं? सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम इसको, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बोली, इसको बनाने के लिए हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा इसको, ठीक है? पहला स्टेप तो क्या होगा कि हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी क्वेरी बनानी पड़ेगी जो ये रिटर्न करे कि अगर मैं कोई एम्प्लॉय पास करता हूँ, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 9 का एग्जांपल लिया था अभी, तो उसकी पूरी हायरार्की दे दे, क्योंकि ये एक बार में सबको पूरा पॉसिबल नहीं है इस क्वेरी को टैकल करना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए, हमें रोज रिपीट करनी है, तो यानी कि हम हर एक एम्प्लॉय को स्कैन करेंगे। इस एम्प्लॉय के लिए पूरी टेबल स्कैन करेंगे, फिर इस एम्प्लॉय के लिए पूरी टेबल स्कैन करेंगे, लाइक 1 बाय 1 करेंगे। तो जैसे कि कर्सर होते हैं एसक्यूएल में, तो हमें 1 बाय 1 पास करना है। यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन के थ्रू डील कर सकते हैं, बट हमें पहली क्वेरी क्या लिखनी है कि लेट से अगर हम एम्प्लॉय आईडी 9 पास करते हैं रिकर्सिव सीटी में, तो वो हमें क्या वैल्यू दे, ठीक है? अब उसको हम कैसे देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। पहले हमने क्या किया, जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है अभी अभी जो सिलेक्ट करी थी, उस एम्प्लॉय टेबल से मान के चलते हैं कि हमें एम्प्लॉय 9 आईडी 9 के लिए मैनेजर निकालने हैं। तो हमने सीधे सीधे एक क्वेरी लगाई एम्प्लॉय आईडी पे और बोला कि मेरे को आईडी दे दो, नेम दे दो, उसका मैनेजर लेवल दे दो, और जो पहला मैनेजर आ रहा है उसको मैनेजर 1 बोलेंगे। तो ये तो डायरेक्ट मैनेजर हो गया, राइट? 4 इज द डायरेक्ट मैनेजर। अब हमें सेकंड चाहिए है कि जो ये अभी मैनेजर आया, ठीक है, सेकंड में जो मैनेजर आया, उस मैनेजर, ये मैनेजर एम्प्लॉय भी होगा, राइट? तो हम इसको ज्वाइन करेंगे दोबारा इसी एम्प्लॉय टेबल से और इस मैनेजर के नाम के बेस पे, और अब इसको, इसकी इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे, राइट? तो पहली वाली में आपने देखा कि जब ये वाली क्वेरी रन करी तो आपको 9 मिला। अब जब से यूनियन ऑल में हमने फिर से यही क्वेरी लिखी, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल ली, इनर ज्वाइन लगाया इसका इसी सीटी एम्प्लॉय हायरार्की सीटी के साथ में, और दोनों को नाम दिया एम्प्लॉय और एम्प्लॉय हायरार्की। और अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय टेबल ले रहे हैं उसका जो आईडी है, वो बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस, जो हमने यहाँ पे टेबल निकाल ली, उसका जो मैनेजर आईडी था, मैनेजर आईडी जो पहले बन चुकी है, उसका मैनेजर आईडी उससे ज्वाइन कर दो, ठीक है? तो और ये ज्वाइन करेगा, तो इसके बाद जब ये 4 ज्वाइन होगा, राइट, तो पूरी टेबल, जब 4 ज्वाइन होगा तो उसको क्या मिलेगा, जब 4 एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन होगा, ये 4 एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन होगा तो उसको अमित मिलेगा। बट अमित जब मिलेगा तो उसको फिर 2 एज ए मैनेजर मिल जाएगा, बट 2 जब एज एन एम्प्लॉय ऐड होगा तो ज्वाइन होगा, तो उसको GM1 मिलेगा।
बट उसको फिर से एक मैनेजर आईडी मिलेगा 1। अब 1 जब एज एम्प्लॉय आएगा तो उसको सीईओ मिलेगा, और यहाँ तक आके उसकी हायरार्की खत्म होगी, क्योंकि उसके बाद उसको कोई मिलेगा नहीं, तो ये ब्रेक हो जाएगा, खुद से ब्रेक हो जाएगा। इसमें आपको रिकर्सिव वो लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, फिर भी लगाएंगे बट अभी जरूरत पड़ेगी नहीं। इसको रन करके देखते हैं। तो देखो इसने हमें क्या दिया, मैंने जो हमारा एम्प्लॉय आईडी था, ठीक है, उसी एम्प्लॉय आईडी के लिए हमें इसने मैनेजर लेवल दिए, ठीक है, मैनेजर लेवल 1 2 4, एम लेवल मैनेजर आईडी 1 2 3, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अभी हम जो आईडी सेलेक्ट करके ला रहे हैं वो लानी चाहिए राइट। तो अभी ये सही हो गया, देखो, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आईडी 9 था, उस 9 का, जिसका नाम जॉन है, एम्प्लॉय आईडी 9 के लिए जो पहला मैनेजर है, डायरेक्ट मैनेजर, दैट इज 4, उसको हमने एम मैनेजर लेवल 1 दिया। उसका जो सेकंड मैनेजर है जो आया था 2, राइट, वो 2 है, उसको हमने लेवल 2 दिया। जो 2 का मैनेजर है 1, राइट, उसको हमने 3 दिया। और जो सीईओ है, जो इसका कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है, वो सीईओ है, और इसका नाम आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसको उसका मैनेजर आईडी नहीं आ रहा है, बट हम इसको क्या करते हैं, आखिरी में जाके जब फाइनल क्वेरी लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हैं फिर से अपनी एम्प्लॉय टेबल के साथ, ठीक है, ए डॉट बी डॉट, और इसको हम कर देंगे ऑन, कि जो हमारे यहाँ पे मैनेजर आईडी आ रहे हैं उनको हम एम्प्लॉय आईडी से वो कर देंगे। तो जो ए का मैनेजर आईडी आया, ये वाले, ठीक है, ये जो आईडी हैं एक्चुअली इनको नाम से रिप्लेस कर देते हैं। नल को हटा भी सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ये ठीक है, हम जब नल आएगा उसको जान जाएंगे कि ये सीईओ है। तो हमने ये एक निकाल लिया, ठीक है, नल को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हमने पहली एक निकाल लिया एक यूजर के लिए। अब हम एक एम्प्लॉय के लिए, और हमें ये रिपीट करना है सबके लिए। अब जैसे 8 के लिए इसी एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं, तो एग्जैक्टली सेम, क्योंकि उसकी भी हायरार्की सेम ही दिख रही है, तो सेम ही आना चाहिए उसको भी, ठीक है। अब 8 के लिए भी देखो सेम आया, बट ऐसे करते जाएंगे हम हर एक के लिए, और वो अलग अलग आएगा। अब इसको टैकल कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बना देंगे एक फंक्शन, ठीक है, इसको एक डाल देंगे फंक्शन के अंदर। फिर हम एक सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे और इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड हम अप्लाई करेंगे क्रॉस अप्लाई। क्रॉस अप्लाई भी एक कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में, अगर आपको नहीं पता तो। और जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, इसको जो डालेंगे क्रिएट, तो ये मैंने फंक्शन को करेक्ट किया। हम एक फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, एंड जिसका रिटर्न टाइप एक टेबल होगी। ये टेबल में विल पास अ वेरिएबल एवरी टाइम। दिस वेरिएबल इज नथिंग बट अपना एम्प्लॉय का जो आईडी है, हम 1 बाई 1 करके एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे, और जो आउटपुट आएगा उसको इस ct को यूज करेंगे, और इस ct का जो रिजल्ट था उसको, ये जो हमने टेबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दिस इज लाइक वी कॉल टेबल वैल्यूड फंक्शन, विल पास दिस आउटपुट टू दिस टेबल, और जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में रिटर्न करते हैं फंक्शन से, रिटर्न पास करेंगे। तो हम पहले ये फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन में को हम जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है, हम 1 बाई 1 करके सारी एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे। अब उसको एम्प्लॉय आईडी पास करने का तरीका क्या होता है, राइट, हम क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं जब हम कोई फंक्शन साथ में ज्वाइन करना होता है किसी टेबल के, और हमें टेबल से इनपुट चाहिए होता है, राइट। हम क्रॉस ज्वाइन जैसे यूज करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आउटपुट, ठीक है। तो अभी हम देखोगे क्या कर रहे हैं, पहले एम्प्लॉय टेबल आपने पहले देखी हुई है, सो सेम एम्प्लॉय टेबल जो हमने दी थी, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। इस टेबल में जितने भी एम्प्लॉय हैं हमारे, आईडी हैं जितने भी,
ID 1 2 3 4, ये 1 by 1 करके हमें पास करना है इस फंक्शन के अंदर। तो इसका लिखने का तरीका आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये क्रॉस अप्लाई करते हैं, दिस इज अनदर टॉपिक, क्रॉस अप्लाई, एंड देन जो फंक्शन होता है उसको हम आइट्रेट करते हैं। तो फंक्शन में हमें हर बार आईडी किसकी चाहिए, एम्प्लॉय की, जो कहाँ से आएगी, एम्प्लॉय ए टेबल से। और हमें पता है कि ये फंक्शन जो है एज अ टेबल आउटपुट देगा, बिकॉज ये जो फंक्शन है वो टेबल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो जो ये आउटपुट आएगा वो बी टेबल के फॉर्म में आएगा। तो हमें जो बी टेबल के कॉलम है बस वो चाहिए सारे, ठीक है। और हम इसको रन करते हैं, इसको रन करेंगे तो आप, और मैंने इसको ऑर्डर किया है बाई एम्प्लॉय आईडी। तो आप देखते हैं नीचे से जॉन, तो आप जॉन को देखो, जॉन जो था उसका एम्प्लॉय 4 जो था वो डायरेक्ट मैनेजर था, जो एम्प्लॉय 2 था वो सेकंड लेवल मैनेजर था, एम्प्लॉय 3 था वो, एम्प्लॉय 1 था वो थर्ड लेवल मैनेजर था, ठीक है। और ऐसे करके जो नल है वो 4 है, और इसमें हाँ हमें नल को हमेशा इग्नोर कर देंगे, वेयर मैनेजर आईडी इज नॉट नल। ये बेसिकली हम फंक्शन में ही कर सकते थे, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इसको अल्टर करते हैं, इसको बोल देते हैं कि जब ये इसमें इंसर्ट करता है यहाँ पे, तो एक कंडीशन लगा देते हैं, वेयर मैनेजर आईडी इज नॉट नल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें जो लास्ट में जब एक बार उसको मैनेजर आईडी नहीं मिलता उस आइट्रेशन के लिए, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने, एक आइट्रेशन एक्स्ट्रा होता है वो ये वाला यूनियन ऑल वाला, ठीक है। ये यूनियन ऑल एक्चुअली सेकंड आइट्रेशन हो जाता है। तो जिसमें मैनेजर आईडी है उसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको रन करते हैं तो आप देखोगे 9 के लिए 4 इज डायरेक्ट मैनेजर, देन जो मैनेजर जो 2 है वो 4 का मैनेजर है, एंड देन जो 2 का मैनेजर है वो 1 है, ठीक है। और 1 की हायरार्की 3 में आता है, तो 1 2 3 ऐसे सेम इसकी हायरार्की आ रही है। फिर एम्प्लॉय आईडी 7 के लिए 3 इज द डायरेक्ट मैनेजर, जो कि मैनेजर लेवल 1 आया, 3 का मैनेजर 1 है, सो दैट इज सेकंड लेवल मैनेजर, ठीक है, करेक्ट, एंड देन सो ऑन। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ एम्प्लॉय हायरार्की। और इसको हम और डिटेल में आप देख सकते हो, गूगल मिलेगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड function like CT का for employee manager hierarchy. Then max recursion case in hierarchy. अब होता क्या है, max recursion case इस hierarchy में, जो भी एग्जांपल हमने देखा, इस hierarchy में जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है, अगर इसमें कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी लेवल पे जाके, जैसे कि एम्प्लॉय जो 1 है उसका कोई मैनेजर नहीं है, बट एम्प्लॉय 2 का मैनेजर 1 है, ठीक है। अगर किसी भी लेवल पे जाके ऐसे हो जाए कि 4 का मैनेजर 2 है एंड 2 का मैनेजर 4 है, जब भी आपको ऐसे फर्स्ट लेवल पे या किसी भी लेवल पे जाके जब भी ऐसे आपको हायरार्की में ये जो जिसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस वो मिलेगा, तो फिर ये जो आपका सीटी है ये रन होता चला जाएगा, राइट। क्योंकि बार बार ये जब आप ज्वाइन लगेगा यहाँ पे, राइट, तो एक ये ज्वाइन जो भी रिटर्न देगा वो फिर इस पे जाएगा और वापस फिर इसी में आएगा और ये सर्कुलर रेफरेंस में चला जाएगा। तो फिर इसके लिए आपको मैक्स रिकर्सन यूज करना होता है। अगर आप मैक्स रिकर्सन नहीं यूज करोगे तो फिर ये ब्रेक होगा वही 100 के बाद जाके। तो आपको मैक्स रिकर्सन हमेशा यूज करना चाहिए इसमें। और कौन सा केस होता है वो, जिसमें कि सर्कुलर रेफरेंस होगा एम्प्लॉय वाले केस में, वो आप हमेशा देखना। कभी आपको कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, अगर आपको टेबल दी हुई है और बोला जा रहा है कि इसमें से एम्प्लॉय टेबल है उससे एम्प्लॉय मैनेजर हायरार्की बनाओ, आपको सीटी का लॉजिक यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। बट टेबल को केयरफुली चेक करना, अगर उसमें कोई एक भी ऐसा एम्प्लॉय मिला जो एम्प्लॉय का मैनेजर एंड मैनेजर का एम्प्लॉय एक दूसरे को किसी भी लेवल पे जाके, किसी भी लेवल का मतलब मैं जब बोल रहा हूँ कि जैसे कि 9 का मैनेजर 4 है, 4 का मैनेजर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 है, और 2 का मैनेजर लेट से फिर से 9 है, राइट। तो फिर ये फिर से सर्कुलर रेफरेंस हो गया कि 9 का 4 था, 4 का 2 था और 2 का मैनेजर 9 था। तो दिस इज ऑल्सो सर्कुलर रेफरेंस इन द थर्ड लेवल। तो अगर किसी भी लेवल पे सर्कुलर रेफरेंस मिलेगा, आपका जो ये सीटी है ये रन होता चला जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन हमेशा यूज करना चाहिए, ऑप्शन मैक्स। सो लेट्स से 20 लेवल की मैनेजर हायरार्की होती है, काफ़ी है, राइट, सेमीकोलन हटाओ। एंड अभी आप आगे इसको देखोगे, हम इसको वापस एडिट करते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया फंक्शन है लिखने के लिए तरीका, मैक्स रिकर्सन को यूज़ करके, ओके, एंड देन रन इट। और आप क्वेरी रन कर सकते हो, अभी भी रिजल्ट वही रहेगा।
इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, बट दिस इज हाउ वी क्रिएट अ मैनेजर हायरार्की। ठीक है, सो ये हमने कवर किया सिटी को। तो सो सिटी हम ओवरऑल पूरा कवर कर चुके हैं। सिटी इज वन ऑफ द एडवांस टॉपिक इन एसक्यूएल, मोस्ट यूज एंड मोस्टली यूज एवरीवेयर, क्योंकि सिटी फंक्शन व्यूज एंड प्रॉक्स तीनों जगह होता है, एंड देन 3 टाइप ऑफ सिटी, एंड ये सारा आप मोस्टली पढ़ चुके हो, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। सो उसके जो इन डेप्थ हमने डिस्कस किया, दिस वाज इम्पॉर्टेंट। आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट विद माई वीडियो एज वेल, okay, so that it will be helpful for you. So if you like this video, you like my information useful, please like the video and subscribe my channel for other videos, and I'm going to discuss all these advanced topics in details with maximum possible questions. Thank you.